أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور آج کا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ ایک دفعہ پھر اہلا وسہلا مرحبا آپ سب کو. ویلکم ٹو آل. آپ کو اسپیشل رمضان کے پروگرام میں جس میں آپ الحمدللہ سلیکٹڈ ورسز فرام دا قرآن مجید دیکھیں گے. اور اس کا جو ٹاپک ہے کوالٹیز آف دا سکسیسفل بلیورز. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سیشن کو بہت زیادہ بینیفیشل بنا دے، علم نافع بنا دے، تاکہ یہ ہماری لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. کل ہم نے جس کوالٹی کو دیکھا تھا پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج ہمارا جو پیٹرن ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کلاس کا 10 منٹس ہم، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ شہر صبر ہے نا، یعنی صبر کا مہینہ ہے، تو 10 منٹس ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم عباد الرحمن کی کوالٹیز جو ہیں، سکسیسفل جو بلیورز ہیں، سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. تو کل جو آپ نے کوالٹی دیکھی تھی، آپ میں سے جو لوگ آئے تھے، کوئی ایک بات جو یاد رہی، پھر میں اپنی بھی شیئرنگ کروں گی کہ مجھے کہاں پہ کیا چیزیں یاد آئیں. جی سسٹر نادیہ. چال کے اوپر میں نے کبھی سنی نہیں کہ آج بھی جب صبح بچوں کو چھوڑ رہی تھا تو مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی. سبحان اللہ باقی ہماری چال کا صبح کیا ہوتی ہے. اللہم آمین. یہ ساری زندگی کریں. جی کسی کو اور کوئی بات یاد رہی، کچھ بھی بات. جی سسٹر سائرہ. اس کے مطابق اس کے ساتھ ہاں آسانی اسموتھ کرنا، بالکل رکنا نہیں. ایگزیکٹلی. الحمدللہ. بارک اللہ. سسٹر سائرہ. جی سسٹر منیرہ. جی چہرے کا ایکسپریشن. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو وہی بات ہے کہ باقی آپ سب بہنوں نے بھی سیکھا ہوگا. ریسرچ ہم نے دیکھی بھی تھی مختلف لوگوں کے حوالے سے. تو میں بھی آج یہی سوچ رہی تھی نکلتے وقت، پڑھاتے وقت، جب آپ کو کل پڑھا بھی رہی تھی، اور الحمدللہ جو چیز بہت زیادہ کلک کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اور ہم دنیا میں راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. پلس یہ کہ اپنی چال جب میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو اتنی اطمینان میں نے اپنی زندگی علم کو میں نے کہا اچھا نہیں لاؤں گی تو پھر میں گاڑی پہ ہی نہ بیٹھوں. میں نے بچوں سے کہا آپ بیٹھیے، آپ پہلے بیٹھ جائیں، پھر میں انشاءاللہ آرام سے چلاتی ہوں. تو بچے دیکھتے ہیں کہ آپ کا رویہ کیسے چینج ہو رہا ہے. تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ورنہ صبح کی جو ہماری بھاگ دوڑ ہے، ہمیں بچوں کو چھوڑنا، ہمیں خود یہاں آنا، کاموں کو بائنڈ اپ کرنا، تو یہ آپ کی جو چائلڈ ہے، یہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو شو کرتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. آپ کا ایمان، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگ، آپ کی فیلنگ، آپ کا یقین کیسا ہے. الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پیچھے آواز آ رہی ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. بس ان مع العسر یسرا. چلیے انشاءاللہ
हम मूव ऑन हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको कल के सेशन से फ़ायदा हुआ होगा और आज से मैं और आप अपनी चालों को देखें कि कहीं हमारे बच्चे किस तरह चलते हैं, मॉडल्स कैसी चलती हैं, हमारी ज़िंदगी का लेआउट क्या है, वे ऑफ लाइफ कैसे है कि ईज़ हमारी ज़िंदगी में, दुनिया के मामलात में, लेकिन आखिरत में जब हमारी मूविंग है, तो हम फ़फ़िर्रु इलल्लाह कहते हैं कि नहीं? तो इंशाअल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब्र के हवाले से जो बात पढ़ेंगे, हम देख रहे थे कि सब्र की जो रियलिटी है, वो उलमा के अक़वाल के मुताबिक क्या है। आज हम लास्ट जो हमारे एक उलमा हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि अबू अली वक़ास कहते हैं कि सब्र ये है कि कोई तक़दीर पर एतराज़ ना करे, अलबत्ता जिस तक़दीर पर एतराज़ ना आए तो ऐसा शिकवा सब्र के मुनाफी नहीं है। बहुत अहम बात है। यानी आपको अपनी तकदीर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके मुँह से कुछ शिकवा भी है। अब वो शिकवा किस तरह का है, वो आगे मेंशन होगा। तो ये सब्र के मुनाफी नहीं होगा। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा, किसके बारे में बताया? अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि बेशक हमने उसे साबिर पाया, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया। इसकी जगह देखिए, इसी एक दूसरी जगह अय्यूब अलैहिस्सलाम का शिकवा मौजूद है, मस्सनिय दुर्र, ए अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है। तो शिकवा तो हो रहा है, यानी अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो याद रखिए कि बगैर तकलीफ के, बगैर बगैर शिकवे के तकलीफ का इज़हार करने की 2 तरह की इक़साम है, 2 तरह की कैटेगरी है कि जो आप बगैर शिकवे के अपनी तकलीफ का इज़हार कर सकते हैं। एक तो ये कि पहली पहली किसकी कंडीशन क्या है कि आप अल्लाह ताला से शिकवा करती हैं, ठीक है? यानी आज़माइश आई, तकलीफ आई और आप अल्लाह से शिकवा करती हैं। दूसरी आज़माइश में जो इंसान आज़माइश में मुब्तला है, वो अपने हाल से, वो अपनी ज़बान से शिकवा करता है। तो जो पहली है ना शिकवा जो अल्लाह से है, ये सब्र के अगेंस्ट नहीं है, ये पेशेंस के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैंने तो अपनी ज़ाहिर हो जाने वाली बेकरारी और अपने गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह की जनाब में करता हूँ। फसब्रुन जमील, सो मेरा काम क्या है? अच्छा सब्र। सेम इसी तरह देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? अन्नी मस्सनिय दुर्रु, बेशक ऐ अल्लाह मुझे तो तकलीफ पहुंची है। हालांकि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इससे पहली आयत में क्या करार दिया? साबिर थे। उनको साबिर का टाइटल दे दिया था कि वो सब्र करने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद जो तकलीफ आई है, उसका शिकवा वो किससे कर रहे हैं? अल्लाह ताला से। तो ये सब्र के मुनाफी नहीं है। आपको कोई तकलीफ आई, आपको कोई चोट लगी, आपको बच्चे की तरफ से कोई गम पहुँचा, शौहर की तरफ से कोई तकलीफ आई, माल का नुकसान हो गया, अब आप क्या करें? अब आप अगर आप अल्लाह से बात करते हैं, अपनी कंप्लेंट रखते हैं, आप सूरत जिसे कहा जाए जो 28 पारे के जो उसमें जो हौला बिन्त साल उसका किस्सा है, वो किससे तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से अपने गमों का शिकवा कर रही थी, जो इस तरह से उनके हस्बैंड ने उनको किस तरह से अपने ऊपर हराम कर दिया था। मुरादे के नहीं हो सकता था उनका आपस में ताल्लुक। तो कहने का मकसद है अब अगर तकलीफ आती है, हम अंबिया को देख रहे हैं कि वो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन ये शिकवा किससे है तकलीफ आने पर? अल्लाह ताला से। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब्र करने वालों के सरदार थे, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले थे, वो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती, ए अल्लाह मैं शिकवा करता हूँ तुझसे दो दो क़ुव्वती, अपनी कमज़ोरी का, व क़िल्लत हिलती, और अपनी बेबसी का। किससे शिकवा कर रहे हैं? ताइफ के सफ़र के मौके पर आपने ये दुआ माँगी थी। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखिए तकलीफ आने पे क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व इलैकल मुश्तकी, ए अल्लाह तारीफ तेरे ही लिए और तुझ ही से मैं शिकवा करता हूँ। तो तकलीफ आती है, आप तकलीफ आने पर कोई टेस्ट आया, कोई आज़माइश आती है, अब ऐसे मौके पर आप अल्लाह को बताते हैं, तो ये सब्र के पेशेंट के अगेंस्ट नहीं है। ये अंबिया का तरीका है और यही हमें बताया जा रहा है कि मैं और आप क्या करें।
अब दूसरा तरीका है कि टेस्ट आया, आप अपनी ज़बान से भी और अपने हाल, यानी जैसे अभी सिस्टर मुनीरा ने कहा ना, अपनी अपनी जेस्चर से भी, अपनी अपनी पोस्चर से भी आप जैसे काजल लोगों को बता रहे हैं कि आप पर, आपके ऊपर क्या टेस्ट आया है, आपके ऊपर क्या तकलीफ आई है, आपके ऊपर क्या बीमारी आई है। यानी आप अपनी ज़बान से भी कलिमात से शिकवा करते हैं और अपनी कैफियत से भी, अपनी जिसे कहा जाए एटीट्यूड से भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये सब्र का अपोज़िट है, ये सब्र का मुतज़ाद है और ये सब्र को ख़त्म कर देता है। इस तरह से इंसान के अंदर सब्र नहीं रहता। इंसान एक तरफ कहता है कि मैं सब्र कर रहा हूँ और दूसरी तरफ कहता है कि जज़ा फ़ज़ा करना। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जो कौल है ना, उसको मेंशन किया है। कैसे वो जहन्नुम में जाएंगे तो क्या कहेंगे, सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस। हम पर बराबर है कि हम घबराएं या हम सब्र करें, हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, हमारे लिए तो भागने की कोई जगह नहीं है। आप देखिए ये जो नफ्स है ना, इंसान का जो एक तो बॉडी है ना, हमारी बॉडी, और एक हमारी सोल है, ये नफ्स है ना, ये इंसान की सवारी है, गाड़ी है, राइड है, जिस पर सवार होकर वो जन्नत या जहन्नुम में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। यानी ये जो नफ्स है, इस पर इंसान के जिस्म सवार होकर या तो वो जन्नत में जाएगा या वो जहन्नुम में जाएगा। और जो सब्र है वो उसकी महार है। महार क्या होती है? आप गाड़ी ड्राइव करके आए ना, अगर स्टीयरिंग व्हील ना हो, आप कैसे ड्राइव करेंगे? कंट्रोल करते हैं ना, स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। गाड़ी की महार क्या है? ये जो आप चला रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए, अगर सवारी की महार नहीं होगी, जैसे आप ऊंट पे बैठे तो उसको कर रहे हैं ना, हाँक रहे हैं, कोई लेकर जा रहा है या कर रहा है। इसी तरह अगर आप घोड़े पे बैठे हैं तो उसको ऐसे करके उसको जोर लगा रहे हैं कि वो भागे भागे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर महार नहीं होगी तो सवारी बेकाबू हो जाएगी। वो क्या होगी? वो तो चल पड़ेगी, यानी वो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी और जिस तरफ चाहेगी चली जाएगी। इसीलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने खुतबा देते हुए कहा था, अपने नफ्सों की तरबियत करो। क्यों? क्योंकि ये हर बुराई का जीना है। जब तक नफ्स का तज़किया नहीं होगा ना, तो बात ये है कि आगे नहीं इंसान जा सकता। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जिसने अपने नफ्स के लिए लगाम जिसने अपने नफ्स के लिए लगाम बनाई और उस लगाम के ज़रिए से अपने नफ्स को अल्लाह की अताअत में लगाता है और बेसब्रा होने के बजाय अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से सब्र करे, यानी उनसे बचे। ये है, जब तक मैं और आप अपना तज़किया नहीं करते, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। तो ये एक तरह से नफ्स क्या है? एक तरह की महार है, एक तरह की आपके लिए टूल है, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह आप या तो जन्नत में जा सकते हैं या फिर जहन्नुम में जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो सब्र की 2 टाइप और हैं, एक होती है बदनी और एक होती है नफ्सियाती सब्र, ठीक है? बदनी का मतलब है फिज़िकल, बॉडी का, ठीक है? और नफ्सियाती का मतलब है मेंटली, मेंटली कैसे आप सब्र करते हैं ना। देखिए हर एक की जो फिज़िकल है और जो मेंटली है, इसकी मज़ीद 2 कैटेगरी है। एक है इख्तियारी बाय चॉइस और एक है इज़्तिरारी, यानी आपको बस करना ही है, करना है। अचानक कोई सिचुएशन आ गई, यू हैव टू डू, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, बाय चॉइस नहीं है, ये बस अल्लाह का फैसला, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको मूव होना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बदनी इख्तियारी क्या होता है, यानी आप अपने इख्तियार और इरादे से अपने जिस्म को मुश्किल अमाल करने का पाबंद करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम देर तक जागते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा सोते हैं। अब वो उन्होंने कैसे सीखा ये? करते-करते एकदम से तो नहीं आ गया कि आप रात में सिर्फ़ जिसे कहा जाए 4 घंटा सोते हैं, नहीं। आपको आपको भी 7 आवर की जो एक नॉर्मल स्लीप है आपको आती होगी, लेकिन आपने अपने नफ्स को इतना टेम किया कि आप उस स्लीप को पूरा आवर तक लेकर आए, अपने इख्तियार से, अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से। क्यों? क्योंकि आपके लिए दूसरे काम, जो दूसरी प्रायोरिटीज़ थी, वो ज़्यादा अहम थी। तो ये जो है ना, ये इख्तियारी है कि बाय चॉइस आप अपने जिस्म को, जिसे कहा जाए अपने इरादे से उसको मुश्किल अमाल के लिए उसको तैयार करें, पाबंद करें। एक है इज़्तिरारी, अब जिस्म पे तकलीफ है, इज़्तिरारी, जैसे आपको कोई चोट लग गई है, अब आपके तो हाथ में नहीं था, अब ये तो बेचैनी होगी ना, खुदा ना खास्ता, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके हाथ में नहीं था, इज़्तिरारी है, अचानक से आपने अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था कि मुझे करना है, नहीं,
कोई जैसे सर्दी गर्मी आती है उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, आपके इख्तियार में नहीं था, इस्तरारी है, आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये दरअसल क्या, जो बदन को तकलीफ पहुंच रही, चाहे किसी के चोट लगने से, कार के एक्सीडेंट से, छोटी सी उंगली के कटने से, या कोई भी मौसम की तब्दीली से, तो ये क्या होता है, इस्तरारी। और ये जो है, ये क्या है, ये इस पर सब्र करना, कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने कैसे करना है। फिर दूसरी चीज है नफ्सियाती। नफ्सियाती का मतलब है मेंटली, जो आप अपनी बाय चॉइस करते हैं, और वो क्या है कि शरई और अकली तौर पर जो अमाल दुरुस्त नहीं है, उनसे सब्र करना, उनसे बचना। आपको पता है कि सूद हराम है, उससे बचेंगे, शरीयत पे हराम करार दिया है। और अकल भी इसको सही नहीं कहती कि एक इंसान दूसरों की, जैसे कहा जाए, मुश्किलात से, उसकी मुसीबत से खेले। आप तो उसको, जैसे कहा जाए, एक के बाद एक सूद देते जाए, लेकिन जब इतना पाइल अप हो जाए कि उसको तो देने की इस्तेताद ही नहीं, और आप लोगों की मजबूरी से खेल लें। अक्ल इस बात का, जिसे कहा जाए, अक्ल भी इस बात को लेट डाउन करती कि नहीं, ये मतलब उसको कट डाउन करती कि ये दुरुस्त नहीं है। सेम इसी तरह शराब को देख लीजिए, शराब को देख लीजिए। तो जब इंसान इससे बचता है, तो ये इंसान की क्या होती है, नफ्सियाती इख्तियारी होती है। मुराद है कि इंसान उन अमाल को गलत समझता है और उस पर सब्र करता है। इसके बाद देखिए, चौथी चीज क्या है, नफ्सियाती है लेकिन इज़्तिरारी है। वो कैसे, अब जैसे आपके हस्बैंड है ना, आपसे कहते हैं लेट्स गो फॉर डिनर, मैं इतने बजे आऊंगा, गेट रेडी, तुम तैयार रहना। अब हुआ कि आप तो इंतजार कर रहे हैं, पता चला हस्बैंड कहते हैं सॉरी, मुझे तो कोई मीटिंग में जाना है, मैं नहीं आ सकता। वहां आपको कहेंगे या अल्लाह, मैं इतना अच्छे से तैयार हुई, सब कुछ किया, मैं इतनी एक्साइटेड थी, अभी आपकी शादी हुई थी और आप इतने अच्छे मूड में थे, लेकिन वो एकदम से आपका मूड ही चेंज हो गया। तो अब ऐसे पे गुस्सा तो आएगा ना। अब ऐसे मौके पर अपने आप को कैसे कंट्रोल किया आपने, तो ये है नफ्सियाती और एकदम से इज़्तिरारी, कि आपने फौरन काम डाउन होना है, कि कैसे, कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्र की ये टाइप है। चलिए, मुझे लगा था कि मैं और पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम हो गया हमारा। थोड़ा सा इंशाल्लाह हम यहीं तक रुकते हैं, बाकी चीजों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। आप देखेगा कि, क्योंकि ये जो मंथ है रमजान का, जो इंशाल्लाह कल से शुरू होने वाला है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदाना, अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में पहुंचाए दे और हमारे तमाम अमाल को कबूल कर ले। तो ये शहर सबर है, सबर का महीना है, इसीलिए इस टॉपिक को लिया था, ताकि मैं और आप अपने सबर को देखें। और ये महीने में अगर ट्रेनिंग हो गई ना, तो रेस्ट ऑफ द 11 मंथ आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, वो पावर मिल जाएगा, वो फ्यूल मिल जाएगा, जो आपको अल्लाह का बंदा बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपके लिए आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। इंशाअल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं। किसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं? आज हम कौन सी क्वालिटी पढ़ेंगे, कौन बताएगा? जी, कौन बताएगा आज हम कौन सी क्वालिटी पढ़ेंगे, किसी को याद है? जी सिस्टर नादिया। जब लोग उनसे बात करते हैं हम्म किस नाम की इसके स्टार्ट हो जाता सुभान अल्लाह, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इबादुर रहमान की क्वालिटी पढ़ी थी ना। अब वो क्या क्वालिटी थी? वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। इबादुल रहमान की क्वालिटी क्या है, कि वो जमीन पर नरमी से चलते हैं, है ना। कैसे चलते हैं? वॉक विद ईज, आसानी के साथ चलते हैं, वकार के साथ चलते हैं, तहम्मुल के साथ चलते हैं। पर हमने कितना डिफरेंस देखा था कि कुरान मजीद में चलने की जब बारी आती है, तो कभी कहा जाता है फिल अर्द, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर आप देखें तो आइलल अर्दी का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है व्हेन यू आर गोइंग टू walk on the earth, make sure you have to be proud on your Islam. आप अपने इस्लाम पे प्राउड करें कि आप मुस्लिम हैं। अल्लाह ताला ने आपको एज अ मुस्लिम बनाया, यू आर द बेस्ट मुस्लिम। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे इस चीज को, कि अल्लाह ताला ने किसी भी रोजे का जिक्र नहीं किया, और ये वो क्वालिटीज नहीं है सिस्टर्स जो किसी नबी ने बताई है, या किसी फरिश्ते ने बताई है, किसी आम इंसान ने, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बताई है। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं। बंदे तो सारे ही अल्लाह के, दीज आर द स्पेशल पीपल, स्पेशल वर्शिपर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इमेजिनेशन में लाइए कि उनकी पहली क्वालिटी ये नहीं कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो हिजाब करते हैं, वो स्माइल देते हैं।
सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया उसकी चाल का। क्यों? क्योंकि चाल आपकी पूरी पर्सनालिटी का आपको रिफ्लेक्ट करती है कि आप कैसे इंसान हैं, आपके अंदर तहम्मुल है कि नहीं, आप कैसे वॉक करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ मामला करते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि हमारी चाल बहुत अच्छी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा लोगों के साथ जो मामला है वो अच्छा नहीं है। तो इनका ना सिर्फ इनकी चाल अच्छी है, बल्कि ये एवरीथिंग लोगों के साथ मामला भी करते हैं तो बहुत ईज़ के साथ करते हैं, आसानी के साथ करते हैं। और लोगों के रवैयों पर जैसे कहा जब आगे बताया जा रहा है कि इनका लोगों के रवैयों के साथ क्या मामला होता है। आज इनकी दूसरी क्वालिटी को देखेंगे, इरादा तो ये था कि कहीं ये क्वालिटी करें, लेकिन देखिए अल्लाह ताला को जो मंज़ूर क्या इनकी दूसरी क्वालिटीज़ है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जाहिल उनके मुँह आए तो कह देते हैं तुमको सलाम हो। अल्लाह अकबर! इमेजिनेशन में लाएँ, कोई जाहिल आके कहे और आप आगे से सलाम। देखिए ये जाहिल का वर्ड जो है ना ये इल्म के मुकाबले में नहीं आया। एक होता है ना इल्म वाला और एक जाहिल है ना? ये वर्ड इल्म के मुकाबले में आया है। बहुत से लोग तो इल्म वाले होते हैं, लेकिन इल्म आने के बावजूद लोगों के बुरे रवैयों पर रिस्पॉन्स भी बुरा करते हैं। तो ये जो वर्ड आया है, ये जाहिल का वर्ड जो है वो इल्म के मुकाबले में नहीं आया, बल्कि ये वर्ड आया है इल्म के मुकाबले में कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है, तो फिर आप उसके साथ कैसे बुरा करते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इल्म होने के बावजूद ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं। याद रखिए कि ये खूबी बड़ी मुश्किल से इंसान के अंदर आती है कि किसी के बुरे रवैये पर हम उसके साथ अच्छा करें। इट्स रियली हार्ड। ये चैलेंज है हम सब के लिए कि कोई आपकी तौहीन करे, आप उसकी तौहीन का जवाब किस्से तान से नहीं देते, उससे शिकवा करके नहीं देते, उसके साथ बदतमीज़ी करके नहीं देते, जहालत का जवाब जहालत से नहीं देते। और कोई आपसे झगड़ा करता है तो झगड़ा नहीं करते, बल्कि सलाम कह के गुज़र जाते हैं। सलाम, कितना खूबसूरत ये वर्ड है ना कि क्या क़ालू सलामा, कि तुम पर सलामती, कितनी खूबसूरत दुआ है कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो इबादुर रहमान का रवैया क्या है? अब देखिए हमारी ज़िंदगी एक बाज़ार की तरह है, जैसे मार्केट होती है ना, मार्केट होती है, तो आप देखिए मार्केट जब एंड होती है, बाज़ार जब एंड होता है, तो आफ्टर द एंड जो भी ताजिर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो दुकान बंद करके या तो नफ़ा लेके लौटते हैं या फिर नुकसान लेके लौटते हैं ना। तो याद रखिए उस वक़्त किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती कि हम गपशप करें, बातें करें। सबको होता है कि बस लौटो घर की तरफ, चलो घर की तरफ। तो मैं और आप पूरा दिन भर जब अपनी सारी मैं और आप भी अपनी तिजारत करते हैं अपनी ज़बान के ज़रिए से और दिन भर जब शाम में हमारा दिल चाहता है कि चुप हो जाएँ, तो देखिए क्या आपने अपनी ज़बान से तिजारत की है, क्या कुछ लेकर लौटे हैं ना, ऐसी चीज़ें समटाइम हम लेकर लौटते हैं जो हमारे लिए, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। और समटाइम ऐसी चीज़ लेके लौटते हैं कि जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदा होती है। ताजिर कभी भी अपना वेस्ट नहीं करता जब दुकान बंद होती है, फ़ौरन फ़ुज़ूल बातों में लगने के बजाय वो वापस घर को लौटेगा। तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़िंदगी में एक मकसद है, तो मैं और आप फ़ुज़ूल किस्म की बातें करके अपने वक़्त को क्यों ज़ाया करते हैं? अपने वक़्त को बहस-ओ-मुबाहिसे में क्यों ज़ाया करते हैं? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि एक स्ट्रेंजर एक सहाबी की तौहीन कर रहा था, तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा कि इतने आगे ना बढ़ जाओ बदतमीज़ी में कि सुलह का मौका ही ना छोड़ो। ऐसा नहीं होता बाज़ औक़ात देखते हैं ना माशरे में, अब अगर आपस में एक मकान मालिक है, एक किराएदार है, तू-तू मैं-मैं चल रही है। बाज़ औक़ात इतना एक्सट्रीम पे लोग आ जाते हैं कि उसका नतीजा ये होता है कि आपस के फिर ताल्लुकात ही खराब और आपको कहते हैं आपको आप किक आउट हो जाएँ। अभी कोई डिज़ास्टर में बता रहा था कि जिसे कहा जाए जो तुर्की और सीरिया में हुआ, पता नहीं आप लोग ने भी सुना होगा कि क्या था वाक़या कि मकान मतलब जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें से एक वाक़या ये था कि मकान मालिक कह रहा था जिसे कहा जाए किराएदार से मेरा जिसे कहा जाए मेरा मेरा मकान का किराया दो वरना तो मैं तुम्हें बस किक आउट कर रहा हूँ। और दूसरे ही लम्हे वो बिल्डिंग गिरी है और दोनों टेंट में पड़े हुए हैं।
दोनों टेंट में पड़े, कौन कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है, कुछ नहीं पता चलता। तो बाज़ औक़ात मैं और आप अपनी आवाज़ें इतनी ऊँची करते हैं कि सामने से फिर जिसे कहा जाए सुलह का मौका ही नहीं रहता। तो अबू ज़र इसी बात को समझा रहे कि सुलह का मौका भी छोड़ो, इतना किसी को इंसल्ट ना करो, इतना किसी के साथ उसकी तौहीन ना करो, बल्कि सुलह का मौका छोड़ दो। तो लोगों के बुरे रवैयों पर आम तौर पर जो दूसरे लोगों का रवैया होता है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला रवैया, इन रवैयों में मैं और आप अपने आप को तलाश करेंगे, ठीक है? कि मेरा और आपका रवैया कहाँ पर है, मैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करे, तो आप क्या करें? यानी मुराद है पहला रवैया ये है, अगर कोई आपके साथ बुरा करे, तो आप उससे ज़्यादा बढ़कर उसके साथ बुरा करें। यानी ना सिर्फ उसको बुरा करें, बल्कि उसके खानदान, उसकी बरादरी, उसकी लीनिएज जो भी है सबको बुरा करें। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो क्या होता है, हस्बैंड सिर्फ जिसे कहा जाए वाइफ को नहीं कहते, उसकी माँ, उसके आगे तुम्हारा तो सारा खानदान ऐसा है, कहते हैं कि नहीं कहते? आपने कितने केसेस आप यूट्यूब पे जाके देखे, कितनी हो सकता है कि आपने अपने आस-पास नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत होता है। सेम वाइस वर्सा। तो ये सबसे पहला रवैया है कि कोई किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसके साथ ना सिर्फ उसके साथ जितना उसने बुरा किया उतना किया, बल्कि मज़ीद उसके खानदान वालों को, उसकी पूरी लीनिएज को बुरा कह दिया और उसको ताना दिया। याद रखिए ये ताना देना मुनाफ़िकीन की आदत होती है कि जब वो बात करते हैं तो झगड़ा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम क्या आता है? मुनाफ़िक की 4 ख़िसलतें हैं ना, जब बात करें तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे और जब लोग उसके पास अमानत रखें तो उसकी खयानत करें और जब लोगों से बात करें तो झगड़े पर उतर आए। ये मुनाफिक की अलामत है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि पूरे उसके खानदान को निकाल दिया। दूसरा रवैया, अब यहाँ पे मैं और आप तुम देखें कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं। दूसरा रवैया ये है कि किसी की बुराई के जवाब में आपने उतना ही बुरा किया जितना उसने आपके साथ किया। यानी एक ने बुरा किया, टिट फॉर टैट जिसे हम कहते हैं ना, जितना करो जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जितना किया उसके साथ बुरा, उसने भी उतना बुरा किया। आपने उसको पुश किया, उसने भी आपको पुश किया। जैसे बच्चे होते हैं ना घरों में, इसने मुझे पुश किया, मैं भी इसको पुश करूंगी। तो ये एक रवैया होता है कि इंसान का एक ऑटोमेटिकली रिएक्शन होता है कि आप देखते हैं किसी ने झटका दिया, आपको याद है, मुझे वो वाकया याद आ रहा है, एकदम से अल्लाह ने जहन में डाला जमीन कि आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के का वक्त था या इसी तरह वक्त, लेकिन नमाज का नहीं, कोई इसी तरह का वक्त है, तो एक सहाबी गलती से आपके पाँव में चढ़ गए थे ना, और आपने एकदम से जैसे आपकी कोहनी जो है उन सहाबी के पास लगी थी ना, तो ये एक फिजिकल एक नेचुरल सा रिएक्शन है। तो फिर कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ट्रीट किया। तो कहने का मकसद है टिट फॉर टैट का मतलब जितना किया है उतना। तो ये पहले रवैये से थोड़ा बेहतर है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। यानी अगर आप किसी की बुराई का इज़हार भी करते हैं, किसी की बुराई की बात को ज़ाहिर करना तो वैसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप पर ज़ुल्म हुआ है, मुराद है कि अगर किसी ने आप पर ज़ुल्म किया, तो उस बुराई को या तो आप बदला ले सकते हैं या किसी से मशवरा करके उसके साथ उतना मामला कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये भी पसंदीदा नहीं है कि आप टिट फॉर टैट करें, ईंट का जवाब ईंट के बजाय, मतलब बातों का जवाब क्या, ईंट के पत्थर से देना। तो याद रखिए ये वही बात है कि अगर किसी ने किसी के साथ बुराई की तो बुराई का ज़ाहिर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, लेकिन इल्ला मन ज़ुलिम, अगर आपके पास इतना ज़ुल्म हुआ है तो ऐसे मौके पर आप उतना बदला ले सकते हैं जितना आप पर ज़ुल्म हुआ है। फिर तीसरा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा दर्जा या क्या है कि किसी के बुरे रवैये पर इंसान खामोश हो जाए। अपने आप को मैं और आप चेक करें, मैं और आप कहाँ हैं? अबू बकर की मिसाल कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक दूसरे इंसान के साथ खड़े थे और दूसरा जो शख्स था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें कह रहा था। अबू बकर पहली दफा, दूसरी दफा बस चुप रहे, मगर तीसरी बार आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना? और आप बोल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? वहाँ से चले गए। फिर आपने फरमाया, जब तक अबू बकर तुम चुप रहे, तुम्हारी तरफ से फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था। लेकिन जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला, तो फरिश्ता वहाँ से चला गया। तो जब चुप रहते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी तरफ से कोई डिफेंडर भेज देता है। तो तीसरा रवैया कि किसी ने बुरा किया, अभी इसको मिसालों से भी समझाऊँगी, घर की मिसालों से। तो फिर क्या है?
کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، یہ تیسرا درجہ ہے کسی کے برے رویے پر۔ چوتھا اسی طرح ایک اور جسے کہا جائے تابعی ہے اشعری ان کا نام ہے، ایک بڑے اسکالر تھے نا، ایک شخص نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اگر تم میری ایک دفعہ توہین کرو گے تو میں تمہاری 10 بار توہین کروں گا۔ اس پر اشعری رحمہ اللہ نے کہا تم اگر 10 دفعہ میری توہین کرو گے تو میں ایک بار بھی تمہاری توہین نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسکالرس ہیں، ہمارے جسے کہا جائے علماء ہیں، تابعین ہیں، ان کو دیکھیں کس قدر اللہ سے ان کا تعلق تھا نا۔ اب چوتھا رویہ دیکھتے ہیں کہ تو اللہ سے دعا کریں پہلے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ رویہ میرے اور آپ کے اندر آ جائے جب کوئی میرے اور آپ کے ساتھ برا کرے۔ چوتھا رویہ کیا ہے کہ کسی کے برے رویے پر انسان اس کو دعا دے اور ان کو معاف کر دے۔ یاد ہے آپ کو جنگ احد کا موقع؟ آپ کو یاد ہے طائف کا واقعہ؟ احد کے موقع پر جب آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، آپ اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے اور دعا دے رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا۔ آپ دیکھیے یہ جو دعا دے رہے، اس دعا کے اندر سب سے پہلے آپ نے خود اپنی قوم کو معاف کیا۔ آپ دیکھیے پوائنٹس دیکھیے، پھر نمبر 2 قوم کو یہ نہیں کہ خود معاف کیا، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگی کہ اللہ تو بھی میری قوم کو معاف کر دے۔ تیسری اہم بات جو پتہ چلتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، میری قوم نہیں جانتے۔ اور چوتھی بات ان کے لیے ایکسکیوز بنایا، یہ نہیں جانتے، یہ اگنورنٹ، ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا۔ درے پر جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے رکھا تھا، یہ نہیں جانتے کس قدر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا مارکا ہے احد کا، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا انداز دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں، اس موقع پر بھی، اس غم کے موقع پر بھی کہ خون نکل رہا، چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، پورا چہرہ لہو لہان، اور آپ اپنی قوم کو کیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں؟ ہم کہاں کریں؟ ہم کبھی اس طرح کا بہیو کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے ساتھ اتنا برا کرے کہ ہمیں ہمارا خون نکل آئے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کا کسی کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں کہ جتنا بھی انشورنس ہے سب کور کرو، علاج بھی کور کرو، اس کو پورا زمین پر لا کے بٹھا دو۔ اور بعض اوقات ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں انشورنس کوریج بھی نہیں کرتے ہیں، ہم تو چھوڑتے ہی نہیں۔ ہم کو پتہ ہے کیسے کس کے ساتھ کس کو کس طرح سے مطلب کس طرح پورا اس کو لے لینا، اس سے جو کچھ بھی اس کے ایسٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ طائف کے موقع پر، اللہ اکبر، جب بھی طائف کا واقعہ سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے طائف کا سفر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار طرح طرح کی تکالیف دے رہے تھے نا، ایک کے بعد ایک آپ کو جسے کہا جائے تکلیفیں دے دیتے، تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں تشریف لے گئے؟ طائف کی طرف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف تھا اور اس کے 3 بڑے سردار تھے۔ آپ کو یہ لگا کہ وہ قبیلہ اگر مسلمان ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دین کو پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی نا، اور مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، مسلمان بھی کمفرٹ میں آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے اور آپ نے ان سرداروں سے گفتگو کی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے دین کی باتوں کو نہ صرف یعنی قبول نہ کیا، بلکہ انتہائی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، انتہائی جسے کہا جائے بے رخی آپ کے ساتھ کی، اور کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ اور ساتھ ہی جو اپنے جو اپنے شہر کے لاوبالی لڑکے ہوتے ہیں نا، جو بدماش قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ پر تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، اتنے کہ آپ کے دونوں جوتے پورے خون سے لہولہان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اسی حالت میں آپ وہاں سے واپس ہو رہے تھے کہ ایک جگہ دیکھا کہ جب پیچھے سے جو لاوبالی قسم کے اوباش لڑکے پیچھے نہیں آ رہے، تو آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور ریسٹ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم الیک اشکو
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجحمني أم إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تجھ ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ لا ابالی، ڈونٹ کیئر اباؤٹ them، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کے اس مقصد تک دور کرنا ضروری ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ایسے موقع پر جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو قوم کے ساتھ گفتگو تھی ان کے جوابات کو سن لیا ہے اور ایک فرشتے کو بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ آتا ہے جو کہ پہاڑوں کی خدمت کے لیے معمول تھا۔ وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں طائف کی دونوں جو پہاڑ ہیں ادھر ادھر ان دونوں کو ملا دوں، یا آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں، آپ جو رائے پیش کریں ہم وہ کریں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کو سننے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا برتاؤ کرے، آپ کو گھر سے دھکے دے کر نکالے، آپ کی اتنی انسلٹ کریں، آپ اس کے لیے یہ دعا کریں گے تمہاری لینیج، یعنی اگر تم نے نہیں ایکسپٹ کیا تو تمہاری بات جو لوگ آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی جیسے کہا جائے فرما برداری کریں گے۔ یہاں پہ رکے سوچے، ایک دفعہ سوچے ہم سیرت سے کتنا دور ہے، انبیاء کے طریقوں سے کتنا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کتنا دور ہے۔ آپ سوچیں، آپ کو اتنا لوگوں نے معاف کر دیا، آپ ہم سب کے پیارے نبی ہیں نا، لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے اتنی پیاری دعا دی نا، اور دعا دینے کے بعد کوئی بدلہ نہیں لیا، بس فکر ہے تو اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں فکر ہے۔ کوئی ناراض بھی ہوتا ہے میری دعوت سے دینے سے، لوگ فٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نہ ابائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی برا بھی کہتا ہے، آپ اللہ کی طرف بلانے والے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو کیا کچھ ملا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ آج آپ لوگوں کو کلاس کی طرف بلاتے ہیں، نہیں آتے لوگ، کوئی بات نہیں، آپ ان کو دعا دینا شروع کر دیجئے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا دینا شروع کر دیجئے، ان کو بلانا شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ اس سنت پر عمل کرنے لگیں گے جو کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔
याद रखिए, मैं और आप जिस माशरे में रहते हैं ना, तो जब इंसान जिस माशरे में रहता है तो वहाँ तरह-तरह के लोग पाए जाते हैं ना, और इंसान का जब दूसरों के साथ एक तरह से इंटरेक्शन होता है, उसको किसी से कुछ पूछना है, कोई जवाब देना है, कोई बात डिस्कस करनी है, तो जहाँ आप मिल-जुल कर रहते हैं तो वहाँ बहुत दफ़ा झगड़े भी होते हैं। आप घरों को देख लीजिए, झगड़े होते हैं, नहीं होते? कौन कहता है कि घरों में झगड़े नहीं होते? हर घर में झगड़े होते हैं। हर घर में जहाँ एक से ज़्यादा अफ़राद होते हैं, वहाँ कोई ना कोई तू-तू, मैं हो जाती है ना, तो झगड़े की नौबत भी आ सकती है। क्यों? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं या आप अपने ख़ानदान में ऐसे हैं कि जो आपका मिज़ाज दूसरों से मुख्तलिफ़ है। एक वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दी है, और जो सामने वाला जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उसको दीन की समझ नहीं है, उसकी सोच मुख्तलिफ़ है, उसका सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ़ है, उसके नज़रियात मुख्तलिफ़ हैं। आप मुसलसल उनकी बातें सुन रहे हैं, कभी वो आपको दीन के नाम पर टॉन्ट करते हैं, कभी वो आपको ताना देते हैं, कभी आपकी दिलशिकनी करते हैं, कभी आपको कोई ऐसी ऐसी चुभता हुआ फ़िक़रा कहते हैं, कभी वो अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाते हैं। चाहे आपको हिजाबी की शक्ल में कहें, ओह! तुम तो बहुत हिजाबी हो गई हो, तुम तो बहुत मज़हबी हो गई हो। ये क्या है? हिजाब अल्लाह का हुक्म है ना, ये भी तो अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाना है। कभी वो आप पर चोटें कसते हैं और कभी आँखों-आँखों से इशारे करते हैं। कभी महफ़िल में आप अबाया पहन के चले जाइए, तो वो आगे आँखों से आपके ही अपने ख़ानदान के लोग को देखो, उनको देखो, ऐसे करके आँखों से इशारा करते हैं। तो इंसान जो इबादुल रहमान है, वो ऐसे माहौल में क्या करे? उनके अंदर रहते हुए कैसे करें? तो याद रखें कि रहमान के बंदे थोड़े हैं, मगर वो डायमंड हैं, वो हीरे हैं। हीरा किसको पसंद है? सबको पसंद है ना। अच्छा, कोई इसका मतलब है किसी को नहीं पसंद है, किसी ने नहीं हैंड रेज़ किया, मुझे तो पता नहीं। तो जो रहमान के बंदे हैं ना, वो डायमंड है, हीरा है, और हीरे की वैल्यू कौन जानता है? वही जानता है ना जो हीरे को तराशता है। मैं और आप क्या जाने, क्योंकि हमें तो अपना ही नहीं पता, तो हम अल्लाह की जो चीज़ें हैं उनको कैसे जाने ना? तो कहने का मकसद ये क्या है, जो अल्लाह के जो बंदे हैं, रहमान के बंदे थोड़े हैं, लेकिन वो डायमंड है, हीरा है। वो वक़ार चाहता है, तो वक़ार यानी अपनी ज़िंदगी में एक ऑनर चाहते हैं, वक़ार चाहते हैं, और वक़ार की अलामत क्या होती है कि जब जाहिल उनसे मुख़ातिब होते हैं, तो ये क्या कहते हैं? क़ालू सलामा, कह देते हैं कि तुमको सलाम हो। अल्लाहू अकबर! मुराद है कि खुशगवार अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में उनसे अलग हो जाते हैं। यानी जो शख़्स जहालत पर उतर आए, तो ये जो इबादुर रहमान है, ये जहालत पर नहीं उतरते। ये आप देखिए कि अमूमन ये होता है ना कि जब कोई जहालत पर उतर आता है, तो इंसान कैसे उतरता है? जैसे आपने किसी को कोई एक बात कही, है ना? अब आपने तो सीधी-सी बात कही थी, लेकिन उसने सीधी-सी बात को इतना टर्न एंड ट्विस्ट किया, और इतना ज़्यादा उस पे उसने गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, नाउज़ुबिल्लाह, बैड-वैड कहना शुरू कर दिया। अमूमन आप देखिए बाज़ घरों में बहुत झगड़े होते हैं हस्बैंड-वाइफ के, बच्चों के, माँ के, और बाज़ों का लैंग्वेजेज़ इतना आ जाता है कि आपने किसी ने एक आम-सी बात कही, लेकिन सामने वाले को वो बात एकदम नेगेटिव अंदाज़ से समझ आई, और उसने ना सिर्फ गुस्सा किया, बल्कि गाली-गलौज शुरू कर दिया, बुरे अल्फ़ाज़ शुरू किए, एक-एक का जवाब 10-10 की सूरत में देना शुरू किया। वो बेचारी मासूम सी लड़की एक बात कहना चाह रही थी, हस्बैंड को समझ नहीं आई, सेम वाइस वर्सा। अगर हस्बैंड ने एक बात कही और बीवी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ तर्रार है, तो आगे से उन्होंने ऐसी बातें सुनाना कि एक हस्बैंड फेंक रहे हैं, तो 10 आगे से फेंक रही हैं बातों के जवाब में, 10 आगे से फेंक रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? आप ऐसी सूरत में इबादुर रहमान का जो रवैया होगा, वो शराफ़त से अलग हो जाएगा। और अल्लाह ताला की आपको पता है ना आयत के अंदर क्या आता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल क़सस में, "वइज़ा समिअु اللغو अअरदू अन्हु वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतग़िल जाहिलीन।" क्या कहते हैं? इसका तर्जुमा क्या बताया जा रहा है कि जब उन्होंने बेहुदा बातें सुनी, लफ़ बातें सुनी, गाली की बातें सुनी, गंदी बातें सुनी, तो ये कहकर उनसे किनारा कश हो गए कि हमारे अमल हमारे लिए, और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम हो।
हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहते। तो ये तरीका बता दिया गया कि जब आपके किसी एक बात से कोई ऑफेंड होता है, बदतमीजी करता है, तो आपको कुरान मजीद क्या रहनुमाई देता है। ये है इस्लाम जो अपने खास बंदों की तरबियत कर रहा है कि जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना, जहालत पर नहीं उतरना, तुम्हें वकार अंदाज में माशरे के अंदर रहना है। तो वकार अंदाज क्या है कि कोई जहालत करे तो उसके साथ जाहिलाना तरीके से इंसान पेश नहीं आए। तो रहमान के जो बंदे हैं ना, उनके अंदर जो खास तब्दीली आती है वो ये कि उनको अल्लाह की पहचान होती है, उन्हें अपने रब की मार्फत होती है, उन्हें अपने रब की किबरियाई का एहसास होता है। और जो आम अफराद होते हैं सोसाइटी के या आपके अपने घर के लोग, तो वो अल्लाह को इस तरह नहीं पहचानते, वो अल्लाह ताला को इस तरह से नहीं जानते। और लेकिन रहमान के बंदे और जब अल्लाह को जानते हैं और जब वो अल्लाह का पैगाम देते हैं, रब के साथ जोड़ने की दावत देते हैं, उसको पहचानने की दावत देते हैं, उसके आगे झुकने की दावत देते हैं, तो ऐसे मौके पर जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर रहमान के बंदों का रवैया क्या है कि वो उनसे टकराते नहीं है ना। तो अब वो तो नहीं टकरा रहे, लेकिन सामने वाला जिसको आपने दावत दी है वो टकराने के लिए आ गया। तो क्या ये आपस में कोलिजन जारी रहना चाहिए कि अगर सामने वाला जो जाहिल है, जो अल्लाह की मार्फत को नहीं जानता, जो अल्लाह ताला की पहचान को नहीं जानता, आप उसको दीन की तरफ बुला रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझता, चाहे आपकी अपने खानदान हो, चाहे माशरा हो, चाहे आपकी अपनी फैमिली हो। तो अगर आप तो नहीं टकरा रहे, लेकिन वो आपसे आके लड़ता है, झगड़ता है कि तुम टू मच हो गई हो, यू आर द फनाटिक, तुम ज्यादा कुछ करने लगी हो, उधर अपने घर वालों को तो देखो। तो क्या ये टकराव जारी रहना चाहिए या इसको शुरू में खत्म कर देना चाहिए। तो याद रखिए इस आयत में यही बात कही जा रही है कि जवाबी टकराव नहीं होना चाहिए, यानी टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दुआ के साथ रुखसत होते हुए उनको दुआ दे दो, क्योंकि तुमने रब की तरफ बुलाना है। तो तुमने क्या करना है कि उनके हक में हिदायत की दुआ करनी है और अलग हो जाओ, हिदायत की दुआ दे के अलग हो जाओ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके खानदान में कि वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसे हैं ना, हम सबके खानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते ना। और होता ये है कि हमें नहीं पता होता है, सम टाइम ऐसा होता है उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मसाइल होते हैं, है ना? बहुत सारी उनकी अपनी ज़िंदगी के लूप्स होल होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वज़ह से वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते और आप पर गुस्सा कर जाते हैं। अब ऐसे मौके पर आपने पढ़ लिया क़ालू सलामा, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, उनके बुरे रवैये पर आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। आप कहेंगे हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में इतने मसले हों, मुझे नहीं पता। और आप ऐसे मौके पर क़ालू सलामा कह के उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मर्द और औरत आए और वो जिसे कहा जाए उनकी आवाज़ें बुलंद हुई, आवाज़ ऊँची हुई, हालाँकि वो मुसलमान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाराज़ नहीं हुए। तो जब लोग आपके साथ बुरा करें, तो आपको क्या करना है? आपको नरमी से, आहिस्तगी से जवाब देना है और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, चलिए शौहर की मिसाल से ज़्यादा समझ आता है ना, या बीवियों की मिसाल से ज़्यादा समझ। चलिए शौहर की मिसाल आपके सामने रखती हूँ और अल्लाह करे एहसान कर दे, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। बाज़ औक़ात शौहर होते हैं ना, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे शौहर हैं, अब घर में होते हैं तो कोई बात उन्होंने आपको ऐसी कह दी, अब आपको ऐसी बात कह दी है जिस पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा भी आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसी बात की जो आप मतलब आपके साथ सूट ही नहीं करती, मैच ही नहीं करती, लेकिन चूँकि आपका मिज़ाज उनके साथ मिलता नहीं है, अब आप क्या करेंगे? उन्होंने तो आपको गुस्से में ऐसी बात कह दी है और अब आप क्या करें? गुस्सा करेंगे? नहीं, आपने फ़ौरन क्या करना है? अपने आप को सबसे पहले खामोश करना है। आपने अपने आप को, जिसे कहा जाए, सबसे पहले मतलब ऐसे अंदाज से जवाब देना है या उनसे ऐसी बात करनी है जो उनको गुस्सा ना दिलाए। उनको सलाम करना है
और उनको काम डाउन करना है। और अगर आपको लगता है काम डाउन से भी बात नहीं बन रही तो आपने चुप हो जाना है। और उनको जिसे कहा जाए मतलब उनको इस तरह से करना है कि आप बात का टॉपिक बदल दें, यानी जो टॉपिक हो रहा था ना, आप कोई ऐसी लाइट सी बात छेड़ दें कि जिससे वो जो एक मूड है वो फौरन स्विच हो जाए। अभी मैं आपको मूड स्विच के हवाले से बताऊंगी कि कैसे मूड स्विच हो सकता है फौरन से, और हम इस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के इज़्न से। तो जब कभी हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले क्या करें, आप खामोश हो जाएं, ठीक है, आगे से रिएक्ट ना करें। ये सबसे कामयाब होता है आप इस घर की फिजा को पुरसुकून रखने का। दूसरा ये कि फिर आप जिसे कहा जाए मतलब आराम से कोई ऐसी बात कह दें कि जिससे जिसे कहा जाए सलामती की बात, या बात को बिल्कुल बदल दें, कोई दूसरी बात ले आए और उनको जवाब ना दें। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आपके हस्बैंड गए थे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड टेस्ट के लिए गए, ब्लड टेस्ट कर कर आए, और ब्लड टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला शुगर तो बहुत आई है। अब शुगर हाई है, अब हस्बैंड आपको आके बताते हैं कि भाई इतनी शुगर आ गई है। अब बीवी ने तो वहीं पे शोर मचाना शुरू कर दिया, हर मीठी चीज खा लेते हैं। मतलब अब आप अंदाज देखिए, अब बीवी आगे से कह दे कि आप तो हर मीठी चीज खाने लगते हैं, मना कर करके थक गई हूँ मतलब एक घरेलू अंदाज होता है औरतों का, मानते नहीं है। कम से कम इतने पढ़े लिखे अपना तो ख्याल करें मतलब इस तरह से जो औरतों के अंदर होता है ना, तो यानी कहीं न कहीं रहता है, उनको बजाए कि कम्फर्ट देने बेचारे वो आपके पास आएँगे, देखो देखो इतनी शुगर हाई आई है। तो आगे से बीवियों का रिएक्शन क्या होता है, हम तो पहले से भरे हुए घर के कामों से हम ऐसे भड़कते हैं कि सुभान अल्लाह, शोर मचाते हैं कि किसने कहा था मीठी चीज़ खाने के लिए? क्यों इतनी आप ज़्यादा अपनी केयरलेस थी? आप तो इतने पढ़े लिखे अपना ख़्याल नहीं रख सकते, हर वक़्त मुरगन ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं, कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं करते। और फिर उसके बाद इतना सुनाने के बाद खुद रोने बैठ जाएँगी, मेरे मियाँ को शुगर हो गई। होता है, आप रोते हम खुद रोएँगे। तो अब आप तो रोने बैठी। पहले तो आपने 4 सुनाई कि एक्सरसाइज़ भी नहीं करते, वो जिसे कहा जाए कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चीज़ें खाते हैं तो डायबिटीज़ नहीं होगा तो क्या? अब बेचारे बेचारे शौहर थे, वैसे ही शुगर आई थी, जब आपकी ये बातें सुनी तो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। अब फिर कहते हैं आइंदा बीवी को कुछ नहीं बताना है। सुभान अल्लाह! फिर ये कहते हैं आइंदा इनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, कहते हैं कि आइंदा मैं तुम्हें रिपोर्ट ही नहीं दिखाऊँगा, वहीं से मामला ख़त्म हो। आपकी बजाय कि कम्फर्ट देना था, उनकी बात को सुनते, उनकी बात को रिएक्ट करते, रियलाइज़ करते, फिर मतलब कोई हल इंशाल्लाह आगे दूँगी, हल कैसे निकालना है। तो आपने कैसे रिएक्ट किया, एकदम जो आपने मतलब ऐसे उनकी बॉस बन गई। कितनी दफ़ा मना करती हूँ, मत खाएँ मीठा, रात में देर-देर तक मीठा खाते रहते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, जब हस्बैंड ने ये सुना तो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, और उसके बाद कहते हैं आइंदा तो मैं तुम्हें रिपोर्ट ही नहीं दिखाऊँगा। तो ये तरीका क्या ये दुरुस्त तरीका है? ये तरीका नहीं है। ये कम्फर्ट देने का तरीका नहीं आता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आए थे और आप एक कपकपी थी आपके जिस्म पर ना, और क्या कर रहे थे, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ा दो, ब्लैंकेट उड़ा दो। आप कैसे आप उनकी टेक केयर कर रही थी ना, और कैसे कह रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे मुझे अपनी जान का खतरा है। तो कहती कहती थी ना कि आप बेकसूरों की मदद करते हैं, रहम के रिश्तों को जोड़ते हैं, आप लोगों को कमा के देते हैं, तो अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम मुझ समेत हम सबका ऑलमोस्ट आगे-पीछे यही रवैया होता है। कुछ ना कुछ हमारी ज़बान से, इतना नहीं लेकिन थोड़ा निकलता है। कितनी दफ़ा आपसे कहा है ना, थोड़ा-सा प्यार हो जाएगा, आप पता नहीं सुन नहीं रहे आजकल मेरी बात, लेकिन क्या अपनी बात रख ही देते हैं किसी न किसी तरह से। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुरान में आता है लमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सूरह शूरा आयत नंबर 43, जो सब्र करे और माफ़ करे तो ये बड़े अज़ीम कामों में से है। देखिए, गुस्से का जवाब कभी भी गुस्से से ना दें, ये इसका हल नहीं है। आप आग को आग से नहीं बुझा सकते, है ना? गुस्सा क्या है? आग है ना, भड़कता है। आप आग को कभी आग से बुझा सकते हैं? मज़ीद आग आग जलेगी, मतलब मज़ीद आप देखिए कि फ़ायर उसमें से निकलेगा, तो पानी से बुझाया जाता है। ऐसे मौके पर एक टिप जिसे कहा जाए, मैं किसी स्कॉलर का सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब कभी गुस्सा आए ना, या जैसे हस्बैंड यलिंग कर रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आप अपनी आवाज़ को बहुत धीमा कर लें। ये
टेम्पररी सोल्यूशन होता है, बहुत ही फौरी सोल्यूशन होता है। तो आप देखिएगा आपके जो इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे बच्चा चीख रहा है मम्मा ऐसे करके ना, अब आप भी क्या हुआ है ऐसे करके अगर आप कहते हैं आगे से जैसे ये रिएक्शन होता है, तो क्या वो और चीख के बोलेगा अब मम्मा ये हो गया, स्पाइडर कोई भी चीज होगी। अब ऐसे मौके पर आपने कहा क्या हुआ बेटा, ओ मामा ये हो गया, तो आप उसकी टोन भी चेंज हो जाएगी। तो ये है कि फौरी रिएक्शन है कि अगर आपके घर में कोई यलिंग कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई संदास से बात कर रहा है, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, कोई भी, तो ऐसे मौके पर अगर आप नहीं है कोई दूसरा, तो फौरन आप जो रिएक्ट करें, अपनी आवाज को धीमी कर लें, अपनी आवाज को जिसे कहा जाए कम कर लें। तो ऐसे मौके पर आप देखिएगा कि सामने वाले का गुस्सा इंस्टेंट तौर पर, फौरी तौर पर कम होगा। जैसे आप देखिए कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती है ना जिससे मुसलसल हमें एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को पीनट से एलर्जी होती है ना, पीनट से एलर्जी। और जब पीनट आप मुसलसल खाते हैं तो आप मुसलसल एलर्जी का शिकार रहते हैं। तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? जब मुझे पता है कि ये सब्ज़ी, ये गोश्त, ये चिकन, ये जिसे कहा जाए ड्राई फ्रूट मुझे नुकसान करता है, तो मैं क्या करूँगी? रुक जाऊँ ना, वरना तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त करनी है। बातों का इतनी सीरियस एलर्जी हो जाती है कि इंसान की जिसे कहा जाए तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप ये देखें सबसे पहले कि वो कौन से हालात हैं जो आपके घर वालों को गुस्सा दिलाते हैं। यानी देखें कि अगर आपके हस्बैंड को किस चीज़ से गुस्सा आता है, आपके बच्चों को किस आदत से आपकी गुस्सा आता है ना, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे गुस्सा आता है। जैसे आपको पता है कि हदीस का मफ़हूम आता है ना कि बीवी अपने अगर ऐसे लोग को अपने घर में बुलाती है जो शौहर को पसंद नहीं, तो ये चीज़ क्या होती है, शौहर को नाराज़ करती है, खफ़ा करती है ना। यानी आपने किसी ऐसे मर्द को यानी अपने कज़न को बुलाया हुआ, फिर हमने हदीस में पढ़ा है, जिससे अगर शौहर मना करते और आप उसको बुलाते हैं, वो शौहर आके देखता है, तो क्या होगा? बात बिगड़ेगी ना कि आपने क्यों मेरी एब्सेंस में इनको बुलाया। और इस तरह से क्या होगा, मिज़ाज के फ़र्क की वज़ह से आपस में जिसे कहा जाए एक तरह से नाचारगी होगी ना। इसी तरह बहुत से लोग बात करते हैं सियासत पे। अब जब सियासत में बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, तो बात करते हुए क्या आप आपस में कैसे होता है, बात भड़क जाती है, कोई एक टीम को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी को टफ सपोर्ट करता है। पता है हो सकता है कि आप जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं मतलब एक जो भी लीडर है उसको फॉलो करती हैं, आपके हस्बैंड एक एंटी हैं। अब आप कहते हैं ये तो इतना इसको आना चाहिए हुकूमत में। अब ऐसे मौके पर क्या आपको पता है ये चीज़ आपके हस्बैंड को नाराज़ करती है, नहीं डिस्कस करें ऐसे टॉपिक। होता है ना बहुत सारी सिस्टर्स की आदत होती है कंपैरिज़न की, उसका शौहर तो इतना अच्छा है, ये देखो मेरी बहन का देखो उसने इतना अच्छा किया। तो आपको पता है ये चीज़ आपके हस्बैंड को गुस्सा दिलाती है, ना करें। इससे क्या होगा कि आपके घर का एक तरह से माहौल खराब होगा। आपकी आपकी ज़िंदगियों में नाचारगी आएगी, आपके रिश्ते मज़ीद कमज़ोर पड़ेंगे। तो जो शख़्स आपको गुस्सा दिलाए, तो आप ऐसे मौके पर कैसे रिएक्ट करेंगे? इबादुर रहमान कैसे रिएक्ट करते हैं? हदीस में आता है, जो शख़्स गुस्से को रोके, हालाँकि उसको अपना गुस्सा निकालने का इख्तियार हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको तमाम लोगों के सामने बुलाकर फरमाएगा, जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले। अल्लाहू अकबर! आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा को अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार रखते हैं, चॉइस रखते हैं कि आप गुस्से को अपने लागू कर सकते हैं, लेकिन आप बाय चॉइस रुकते हैं। जैसे सब्र तभी हमने देखा था ना बाय चॉइस रुकते हैं, तो कल क़यामत के दिन क्या होगा कि आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबके सामने बुलाएगा कि जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले। और अगर ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर दे, तो याद रखिए ये बेहतरीन दर्जा है। और अगर माफ़ नहीं कर सकता, तो फिर क्या करें? अल्लाह के हवाले मामलात को कर दें। अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात को कर दें, क्योंकि वही बेहतरीन बदला देने वाला है, वही बेहतरीन अज्र सवाब अज्र सवाब से नवाज़ने वाला है। अल्लाह ताला कहते हैं व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, सूरह अल-मुमिन आयत नंबर 44। मैं अपने तमाम काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। और ये सोचकर कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे गुनाहों और मेरी गलतियों को ढाँप लेगा, मैं भी ख़ताकार हूँ, मुझे भी अफ़ू दरगुज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसान को चाहिए अपने घरवालों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने बच्चों को, जो भी आपकी आपकी बिलॉन्गिंग में रिलेशनशिप्स हैं, उनको माफ़ कर दीजिए।
تو इंशाल्लाह जब आप माफ कर देंगे और क़ालू सलामा के जैसे कहा जाए एक्शन पे अमल करेंगे, तो आप देखिएगा कि घर का माहौल इस कदर खूबसूरत हो जाएगा कि आपका उस घर में दिल लगेगा। अब मैं आपके सामने एक वाक़या सुनाती हूँ ताकि आप देखें कि जो हमारे इमाम थे, इमाम अबू हनीफ़ा, आपने नाम सुना हुआ ना इमाम अबू हनीफ़ा का? 2 इनकी स्टोरी शेयर करूँगी कि आप देखिए कितना ज़्यादा इनका रिएक्शन था लोगों के रवैये पर, कैसे रिएक्ट करते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं चुनता लोगों को, अगर अगर कोई चुना गया ये तो अल्लाह का चुना है। ख़ासकर दीन के हवाले से, ये जो इंतकाम है इमाम अबू हनीफ़ा का, और अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि अल्लाह ताला ने इनको कितना इल्म दिया है। वो इल्म दिया है जो इल्म का ज़रिया बना है, वो इल्म दिया है जो अमल का ज़रिया बना है। तो आपके सामने एक वाक़या रखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा का, कि एक दफ़ा क्या होता है कि वो अपने जैसे कहा जाए, वो आप सब जानते हैं कि फ़क़ीह है ना, लोग उनके पास फ़तवा लेने के लिए आते थे ना। जब फ़तवा लेने के लिए आते थे तो एक दफ़ा उनकी माँ उनके पास आई और उनसे किसी मसले के बारे में पूछा। इमाम अबू हनीफ़ा चूँकि फ़क़ीह थे, लोग उनके पास फ़तवा लेने के लिए आते थे, तो हुआ क्या कि उन्होंने उसका जवाब दे दिया। माँ ने आगे से कह दिया, तुमको नहीं पता, तुम नहीं जानते। अब देखिए इतने बड़े फ़कीह जिनके पास दूर-दराज़ से लोग आ रहे हैं, लेकिन माँ कहती है कि तुमको नहीं पता। और वो क्या करती हैं, बताइए? कि वो किसी और के पास जाती है और उसको मसला बताती है। अब जिसको मसला बताती है, तो वो आके बताती कि ऐसा-ऐसा हुआ है और तुम मुझे इसका मसले का हल बताओ। अब वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ, तो मैं आपको इसका फ़तवा देता हूँ। अब वो जो इंसान थे, वो जो बेसिकली फ़तवा देने वाले नहीं थे, यानी उनकी इतनी अहलियत नहीं थी, वो इतना ज़्यादा ऊपर दर्जे के दाई नहीं थे कि वो फ़तवा दे सकें। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो वो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ आई थी और मुझे इस मसले पर आपसे मतलब फ़तवा माँगा है। आप देखिए कितने रहीम हैं रहिमहुल्लाह, कहते हैं कि ओके, इस मसले का ये फ़तवा है और तुम ये फ़तवा उनको बता देना, मगर मेरा ज़िक्र नहीं करना, नहीं बताना कि मैंने ये फ़तवा बताया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिस्टर कि दीन आने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी अपनी फैमिली, हमारे अपने घरवाले आपकी बात सुनना नहीं चाहते। आपको मसले का पता होता है, वो आपको कोई आग नहीं लगाता, उनको पता है ये तो अभी दीन सीखने चले हैं, इनसे क्या पूछूँगी मैं, है ना? यही होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अल्लाह ताला आपको दीन की समझ देता है, जब घर में ईमान का नूर मौजूद है, दीन की शम्एं मौजूद हैं, आप कहते हैं मैं इससे क्या पूछूँ, मैं तो किसी जिसे कहा जाए बड़े बड़े जिसे कहा जाए किसी इंसान से पूछूँगी जो वाक़ई इसका इल्म रखता हो। तो बाज़ औक़ात आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने घरवाले, आपका अपना ख़ानदान बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहता। आप जिसे कहा जाए क्योंकि आप इस्लाम के बहुत करीब हैं, मगर वो इतना करीब नहीं है। अब इस वज़ह से क्या होता है सम टाइम आपको गुस्सा भी आता है, कि ये क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? मैं इनको जैसे अब आप देखिए बस वक़्त होता है ना, आप दिन पर आते हैं तो आपकी माएँ आपको बैक टू होम से कॉल करती हैं, "अच्छा बेटा शब-ए बारात में जाने का है कि नहीं?" "मम्मी नहीं है, शब-ए बारात में नहीं जाते।" "हाँ, फिर भूल गए?" "अच्छा नहीं, मैंने तो वो वीडियो देखा था, वो मुफ्ती बता रहे थे कि उसमें तो शब-ए बारात के सेलिब्रेट करने का है।" तो बस ठीक है मम्मी, अगर आपको ही लगता है तो आप देखिए मैं क्या बताऊँ आपको? तो कहने का मकसद सिर्फ़ ये कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इल्म आने के बावजूद, मिसाल देके समझाया, तो ऐसे मौके पर आपको गुस्सा भी आता है। तो जब गुस्सा आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है, मोमिन तो मोहब्बत और उल्फत का मरकज़ होता है। लोग इसको चाहते हैं और वो उस आदमी में कोई भलाई नहीं, जो दूसरों से उल्फत नहीं करता और दूसरे उससे उल्फत नहीं करते। जब गुस्सा करता है तो लोग उससे उल्फत नहीं करते बल्कि दूर रहना ही ठीक समझते हैं। तो क्या बात सब समझ आती है इस हदीस से कि मोमिन हमेशा मोहब्बत और उल्फत का मरकज़ है। यानी अगर आप किसी के पास बैठते हैं, अपने घरवालों के पास, अपने क्लासमेट के साथ अगर आपको मोहब्बत मिलती है
उल्फत मिलती है, उनसियत मिलती है, तो जो मोमिन है वो इस चीज का पैकर है। और जिसके अंदर कोई भलाई नहीं, जिसके अंदर कोई उल्फत नहीं, तो फिर लोग उसके साथ बैठना भी नहीं चाहते, है ना। अगर आपको पता है कि ये इनका मिजाज ऐसा, आप बस सलाम दुआ करके आगे बढ़ जाते हैं ना, आपको कोई जरूरत नहीं होती कि इतनी ज्यादा इनसे डिटेल में बात करने की। तो याद रखिए, जब तक मेरे और आपके अंदर इल्म के बाद हिल्म नहीं आएगा, मैं और आप नेकी का काम कर ही नहीं सकते। कालू सलाम पे जिसे कहा जाए एक्ट नहीं कर सकते कि लोगों के बुरे रवैये पर मैं और आप अच्छा करें। अब ये बहुत अहम वाकया है, जिसको गौर से सुनिएगा। जब मैं ये वाकया पढ़ रही थी, मैं सोची थी सुभान अल्लाह, हम लोग तो कहीं पर नहीं। ये भी जिसे कहा जाए इमाम अबू हनीफा का वाक़या है, जो उनके हिल्म का है, बुर्दबारी का वाक़या है। आप देखिए कि वो अंबिया के नक्शे कदम पर चलते थे ना, बहुत ज़्यादा अव्वाब थे ना, गुस्से पे काबू रखते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको जिसे कहा जाए अपने काम के लिए चुना, इनको इमाम बनाया। मुत्तकी लोग थे, सेल्फ कंट्रोल करना जानते थे ना। तो इस वाक़ये से क्या पता चलता है? इंशाल्लाह इसको देखते हैं। वाक़या क्या है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। एक रोज क्या हुआ कि जोहर की नमाज के बाद अबू हनीफा रहीमहुल्लाह घर तशरीफ ले गए। अब क्या हुआ कि ऊपर की मंजिल पर आपकी रहाइश थी, आप रहा करते थे। अब जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटे थे कि नीचे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अंदाजा कीजिए, जो रात भर जागा हो। आप में से कितने लोग हैं जिनको नींद आ रही है? हम्म? रात भर जागा हो, फिर इबादत भी उसने की है, यानी कि रात भर जागी है और खूब टेक्सिंग हो रही है, और खूब जिसे कहा जाए वीडियो गेम चल रहा है, और खूब जिसे कहा जाए जो दिल चाहे नहीं, रात भर जागे हो, इबादत क्यों, सारा दिन मसरूफ रहे। अब उसकी क्या कैफियत होगी कि ऐन आराम के वक्त कोई मिलने आ जाए। आप सोचिए, आपके साथ ऐसा, आप पूरी रात जागे, कल एग्जाम दिया है, आपने इबादत भी की, और आपका अब दिल चाह रहा है कि बस मैंने जो अपना हिस्से का काम था वो कर लिया, अब मैं आराम करूंगी। तो अब अगर ऐसे मौके पर घर में कोई नहीं है, नॉक होता है, दस्तक, बेल पे बेल, हम तो बेल पे हाथ रख के भूल जाते हैं कि जब तक कोई खोलेगा नहीं, हम तो वहां से जाएंगे नहीं। अब ये देखिए, आप आराम के वक्त कोई शख्स मिलने आया, लेकिन इमाम अबू हनीफा उठे और जीने से, सीढ़ी से नीचे उतरे। आज मैं ये सोची थी, आज जैसे हम ऊपर नीचे करें ना, बच्चों से कहते हैं बेटा जरा देखना जाके नीचे, तो नीचे उतरना उनके लिए बाज़ मुश्किल होता है कि हम जाके दरवाजा खोलें। आप देखिए, आप इतने बड़े इमाम हैं, आप खुद नीचे उतरे, दरवाजा खोला तो देखा एक साहिब खड़े थे। इमाम साहब ने पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा एक मसला मालूम करने आया हूँ। इमाम साहब देखिए, अगर कोई और होता तो कैसे रिएक्ट करता। एक तो आप वैसे ही पढ़ने पढ़ाने वाले, आप फतवे देते हैं। अब इंसान को होगा ना कि मैंने जब क्लास करने बैठी तो ये बंदा कहाँ था, उस वक्त क्यों नहीं इसने सवाल किया। इस तरह की फीलिंग्स आती है कि नहीं आती है ना, क्योंकि जब आप मुसलसल फकीह हैं, लोगों को फतवे देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनको दीन के उमूर समझाते हैं। अब ऐसे मौके पर देखिए, जब इमाम साहब मसाइल हल करने बैठते थे, वहां तो मसला पूछा नहीं, और अब बेवक्त परेशान करने आ गया। अगर हम होते तो हम इसी तरह सोचते ना, कि अगर हम किसी को फतवा देने वाले होते तो हमारे दिल में आता इसको यही टाइम मिला था, इसको जरा एहसास नहीं हुआ कि जिस वक्त मैं बातें करती हूँ, जिस वक्त मैं दीन की बातें लोगों को बताती, तो उस वक्त ये कहाँ था। लेकिन इमाम साहब ने उसको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि फरमाया अच्छा भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था, मगर अब वो मसला भूल गया। मसला ही भूल गया उसका, याद ही नहीं रहा क्या मसला पूछना था। अब इमाम साहब ने फरमाया अच्छा जब याद आए ना तो पूछ लेना। अल्लाह अकबर। यहाँ पे हिलम रुक के देखे, मैं और आप रुक के देखे, इतने थके बेलुदा से घर गए, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं आता। किसी का फोन आया कि आप प्लीज जल्दी से बताएं, हम कह नॉक करके बताएं, अब कहे ओ मैं तो भूल ही गई क्या पूछना था। बस आपकी क्या कैफियत होगी। आप यहाँ पे फिल्म देखें, आपने उसको बुरा भला ना कहा और ना डांटा, और खामोशी से वापस जाकर बिस्तर पर लेटे के इतनी देर में दोबारा दस्तक हुई। फिर नीचे आए, दरवाजा खोला, वही शख्स खड़ा था। आपने पूछा क्या बात है, उसने कहा वो मसला याद आ गया था। आपने कहा पूछ लो। उसने कहा अभी तक तो याद था, मगर जब आप आधी सीढ़ियों तक आए तो फिर भूल गया। कितना इल्म का इम्तिहान है। आधी सीढ़ी तक आपको आते देखा तो मैं मसला ही भूल गया।
अब अगर एक आम आदमी होता, सोचिए उसका गुस्से के मारे क्या आलम होता। बर्दाश्त कर सकते थे कि क्या मजाक बना रखा, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई लाइफ है। हम तो इसी तरह के फिक्रे कहते। सोचे, आप देखिए, इतना इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने इनको चुना है। ये अपने नफ्स को मिटा चुके थे, यानी इंसान अपने नफ्स को बिल्कुल रती बना ली, तो अल्लाह की खातिर, और ये अपने नफ्स को मिटा चुके थे। तो क्या हुआ कि इमाम साहब ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा भाई, जब याद आए ना तो पूछ लेना। ये कह के वापस जाकर बिस्तर पे लेट गए। अब क्या हुआ कि दोबारा फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। आप फिर नीचे आए, दरवाजा खोला, वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्यों, क्या बात है? उसने कहा, वो मसला याद आ गया। तो फिर मसला क्या था कि इंसान की जो निजात है, जो एक्सक्रीशन है, उसका जायका कड़वा होता है या मीठा। अल्लाह अकबर, सवाल देखिए। अब देखिए, कोई भी और आदमी होता और बड़ा जब्त करने वाला होता, तो इस सवाल के बाद तो उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। लेकिन इमाम अबू हनीफा ऐसे ही तो इमाम नहीं बनाए गए थे। अल्लाह ताला ने जिनको इतना बड़ा मुकाम दिया, इतना बड़ा मर्तबा दिया, वो यूं ही नहीं दे दिया। अगर वो ऐसे ही ठरले दिल वाले होते, यानी मिजाज में बहुत, जिसे कहा जाए, उतार चढ़ाव होता, कि कभी अच्छे हैं और कभी जिसे कहा जाए मतलब बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, कभी एकदम मिजाज में इरिटेशन है, तो ये रुतबा आपको मिलता, ये टाइटल आपको मिलता, ये मुकाम मिलता नहीं। अब आप सोचिए सवाल भी क्या था। अब इमाम साहब ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया कि अगर आदमी की मिजाजत अगर फ्रेश है तो इसमें मिठास होती है, और जब खुश्क हो जाए तो वो कड़वा होता है। अब सवाल देखिए उस शख्स का, उसने पूछा, आपने चखा है कभी? अब सवाल कितना गुस्सा दिलाने वाला है। इमाम साहब ने फरमाया, और वाकई इस वक्त दिल से निकल रहा था, क्या दिल से निकल रहा था, रहीमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करे। तो उनका जब्त देखिए, उनका हिलन देखिए। आगे से कहते हैं, हर चीज का इल्म चक्कर हासिल नहीं होता, बल्कि पांच चीजों का इल्म अक्ल से हासिल होता है। और अक्ल से ये मालूम होता है कि जो ताजा निजात पर मक्खियां बैठती हैं, और जो सूखी है उस पर, जो सूखी निजात होती है उस पर मक्खियां नहीं बैठती हैं। जब इमाम साहब ने ये बात जवाब दी तो उस शख्स ने कहा, इमाम साहब, यानी इमाम अबू हनीफा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया, आज आपने मुझको हरा दिया। सुभान अल्लाह। तो ऐसा है, एक दफा रुक के सोचिए, ये है गुस्से पे काबू पाना। मैं और आप इस तरह कर सकते हैं। एक दफा बच्चा आया, आप पढ़ रहे हैं, दूसरी दफा बच्चा आया, हम तो पहले डांटते, अभी नहीं आना, डिस्टर्ब नहीं करना, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा बहुत अहम टॉपिक मुझे तैयार करना है, दस देना भी है, कोई छोटा काम भी नहीं है, इतने लोगों को बताना है, समझाना है। बच्चा कहता है, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। हम कहते, फिर हम तो हल्के से कहते, बेटा हटो, अभी मुझे ना करो। तो आप सोचिए कि आप, ये इतना अहम मसला भी नहीं था, और आप पूरी रात के जागे हुए मुसलसल लोगों को फतवे भी दे रहे हैं, अपनी इबादत भी कर रहे हैं। अब थोड़ा देर मिला आराम को, उस वक्त भी कोई साहिल आके आपसे सवाल करता है, और आप कैसे उसकी हर बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे ये रुतबे नहीं मिलते, ऐसे ये मुकाम नहीं मिलता। जो अपने नफ्स को कुचल देता है, जो अपने नफ्स को बेच देता है अल्लाह की रजा की खातिर, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में भी ऐसे लोगों का नाम हमेशा के लिए बाकी रखता है। जी सिस्टर, मैं इंशाल्लाह एंड में लूँ, या अब मैं बस इसको इंशाल्लाह थोड़ी सी बात और कर लूं, मैं एंड में ले देती हूँ इंशाल्लाह 5 मिनट। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ये है गुस्से पे पाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझको इल्म देकर गिना अता कर दे, और हिलम की जीनत अता कर दे। बाज़ औक़ात इस बात पर आपको गुस्सा आता है कि आपके घर में आपके अपने घर वाले, आपकी अपनी बच्चियां हिजाब नहीं करती हैं, आपके अपने घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते, होता है ना कि आपके अपने बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। कितनी कंप्लेन आती है कि अच्छा खासी पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा, या शौहर पहले मस्जिद जाते थे अब जाते ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे या फोन के आगे बैठे थे। बच्चियां पहले हिजाब करती थी, हम हिजाब उतार दिया। कितना कॉमन होता है कि बच्चियां पहनती थी, नहीं पहनती हैं। अब ऐसे मौके पर याद रखिए, अब ऐसे मौके पर क्या है कि
आप देखेंगे गुस्से की मतलब आप कैसे रिएक्ट करें ना, उसको कैसे जवाब दें, किस तरह से जिसे कहा जाए उस चीज को देखें ना। तो आप ये देखिए, आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो आपको पुरअमन तरीके से उनके साथ रिएक्ट करना है, बहुत आसान तरीके से उनके साथ मामला करना है ताकि वो दीन की तरफ आए। आप सबसे पहले देखिए कि वजह क्या है। अमूमन आप बच्चे नमाज जब नहीं पढ़ते तो आप कैसे इजहार करते हैं, आप क्या गुस्सा करते हैं, आप उन पर यलिंग करते हैं, आप उनकी बात को सुनते नहीं है और आगे से कहते हैं तुम तो मुनाफिक हो, या तुम जिसे कहते हैं नमाज ही नहीं पढ़ते, या इस तरह से कहते हैं तुम तो कभी नमाज पढ़ ही नहीं सकते। होता है ना, हमारे गुस्से में कहते थे जाओ दफा हो जाओ, ना पढ़ो, जिसे कहा तुम देखना जहन्नुम में क्या होगा। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम तो बेनमाजी रहोगे। तो ऐसी बातें बच्चों को सुनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, गुस्सा जरूर आता है जब मेरे और आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे और आपके बच्चे हिजाब नहीं करते। असल बात है कि उसको टैकल कैसे करना है। गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी नाफरमानी की वजह से, जो मैंने उनको हुक्म दिया है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है और वो उस हुक्म को बजा नहीं ला रहे। तो ऐसे मौके पर वजह मालूम कीजिए। आप उनको देखिए कि वो क्यों नहीं, आप उनको लेके बैठिए और उनसे कहिए कि क्यों, क्या वजह है कि आप नमाज नहीं पढ़ते, तो वजह मालूम कीजिए। तो फिर क्या है कि आप ना वजह मालूम कीजिए। पता है कि आप यलिंग करें, गुस्सा तो आएगा, लेकिन आपने यलिंग नहीं करना है, आपने मिल के बच्चों के साथ बैठना है और मसले का हल तलाश करना है। उनको पहले तो आप उनसे पूछिए क्या बात है, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ना चाहते, क्या आपको पता है कि नमाज फर्ज है? बच्चे कहेंगे हाँ मम्मा फर्ज है। उसके बाद पूछे क्या चीज आपको मुश्किल लगती है, आपको नमाज नहीं आती पढ़ना, आपको नमाज में मुश्किल होती है, आपको दुआएं नहीं याद है, नमाज के जो भी अरकान है वो सही से नहीं पता, या आपको कुरान की आयत याद नहीं है। फिर आगे चलिए, क्या आपको वुजू करना मुश्किल लगता है? तो जब असल वजह जब पता चले कि नहीं ये तो वजह है ही नहीं, वो तो मुश्किल नहीं है, नमाज भी मुश्किल नहीं है, बस फिर देखें कि क्या वजह है कि इसके बावजूद बच्चे नमाज नहीं पढ़े। उनको फिर आखिरत की याद दिलाएं, जन्नत की बातें बताएं, दोसा की बातें बताएं, अल्लाह के इनामात को याद दिलाएं कि क्या क्या तोहफे हैं, कल नमाज का सबसे पहले सवाल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा नहीं सुनता। तो फिर देखें कि आखिर वजह क्या है कि ये फजर की नमाज नहीं पढ़ा। देखिए रात को देर से तो नहीं सोता, देखिए चेक कीजिए। फिर देखें कि फजर फिर ये देखें कि रात को अगर देर से सो रहा है तो ये भी चेक करें कि जिसे कहा था रात को देर से सोने की वजह क्या थी, कोई यूनिवर्सिटी का काम था या गेम वॉच कर रहा था, क्या था। इस तरह से आप करते 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 क्या करें, इस मसले का हल तलाश करें। याद रखिए, तबलीग भी अल्लाह के लिए होती है और नमाज भी अल्लाह के लिए है। तो मिल बैठकर इंशाल्लाह आप इस बात का हल निकालेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका बेटर सोल्यूशन मिलेगा। गुस्से से कभी भी बच्चे बदलते नहीं, कभी भी बच्चे नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका गुस्सा उन्हें दीन से और दूर ले जाएगा। एक वक्त था ना कि जब मैं और आप भी नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तब अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता था, गुस्से में आकर नमाज पढ़ने का ताना देता था, तो क्या आप नमाज पढ़ लेते थे? आप और दीन से दूर होते थे। क्योंकि अक्सर होता है ना, आप किसी चीज के लिए जिद करें, बार बार इंसिस्ट करें, बच्चे क्या होते हैं उससे और दूर हो जाते हैं। तो मैं और आप क्या करें, मैं और आप उस वक्त को सोचे कि जब मैं मुझे और आपको कोई कहता था नमाज के लिए, तो वो चीज उससे मैं कहता था, तो आप उस पे कैसे रिएक्ट करते थे? आप नमाज पढ़ देते थे? नहीं, आप कहते अब तो मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगी। अक्सर आपने बड़ों को देखा है कि जो अक्सर मौलवी की नमाजों को हुज्जत बना के कहते हैं, ऐसे मौलवी से तो बेहतर है कि हम नमाज ही ना पढ़ें, कि जो उसपे झूठ बोल रहे हैं, जो कि इस तरह से डाका डाल रहे हैं, लोगों की गिबत कर रहे हैं, तो ये हुज्जत बना लेते हैं। बच्चों को आप ज्यादा जज करें, गुस्सा करें, ठीक है हम नहीं पढ़ रहे, आप जो करना है कर लें। तो कहने का मकसद सिर्फ क्या है, अब ऐसे मौके पर आप अपने वक्त को याद करें और ये सोचें कि आप बच्चे का दिल नहीं बदल सकते हैं। तो आप ऐसे मौके पर उसके साथ नरमी का सलूक करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका दिल बदल दे, अल्लाह ताला इसका दिल नरम कर दे। दुआ मांगीजिए, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबहुम अला दीनिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल अबसार सर्रिफ अबसारहुम अला तआतिक, अल्लाहुम्मा ज़य्यिना
बिज़ीनतिल ईमान वजअलहुम हुदातम मुहतदीन, कि अल्लाह ताला इनको इनको ईमान की जिसे कहा जाए ज़ीनत से इनको बिल्कुल इनको मुज़य्यन कर दे और इनको हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर दे। तो ये एक तरीका है कि आप उनको दुआ दें, और यही तरीका है कि किसी भी मौके पर जब कोई आपको बुरे रवैये से पेश आता है, चाहे आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपके जिसे कहा जाए फैमिली है, आपकी जिसे कहा जाए फ्रेंड्स है, तो ऐसे मौके पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अब थोड़ा-सा 1-2 चीज़ों पे बात करके फिर इंशाल्लाह बात को ख़त्म करती हूँ कि कैसे इसका इलाज किया जाए। एक तो बच्चों के साथ इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिए जो गुस्से का इलाज है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। शुरू से आप क्या करेंगे सबसे पहले सोच से शुरू होकर अमल तक इंशाल्लाह हम जाएँगे। कैसे? आप देखिए दुनियावी नाकामियों पर जब गुस्सा आता है, तो उसके पीछे असल रीज़न क्या होता है? जब आप दुनिया में नाकाम होते हैं, तो उसके पीछे असल रीज़न क्या होता है? हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत इस कदर दिल में पैदा हो जाती है कि उसके ज़ाया हो जाने पर इंसान बाज़ औक़ात गम से निढाल हो जाता है। कि उसका दिल जलता बनता है और अंदर ही अंदर घुलता रहता है और इंसान बदमिज़ाज हो जाता है। जैसे आप दुनियावी तौर पर आप आगे आगे जिसे कहा जाए अपग्रेड नहीं हो रहे, आप वही जॉब पे लगे हैं, वही आपका लिविंग आप स्टाइल है और आप कोई आगे नहीं जा रहे और आपकी ख़्वाहिश है और आप अंदर से जलते हैं, भुनते हैं और आप दुनिया को इस तरह से कहते हैं, दुनिया आपके अंदर बसी हुई है, तो ये चीज़ आपको बदमिज़ाज बना देगी। लिहाज़ा सबसे पहले अपनी सोच की इस्लाह करनी है। कि अगर दुनिया में तरक्की नहीं मिलती, दुनिया में आप अपग्रेड नहीं होते, तो इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर क़ादिर है। और फिर ये सोचिए माशा अल्लाहु काना व मा लम यशअ लम यकुन, कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ और जो उसने हमारे लिए नहीं चाहा वो नहीं हुआ। मुराद है कि यही अल्लाह की तक़दीर है, यही अल्लाह का फ़ैसला है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने गुस्से को ठंडा करना है और जो मुझे मिला है, जैसे घरवाले, जैसा रिज़्क़, जैसी फैमिली, जैसे फ्रेंड्स, जैसे माशरा मिला है, मुझे क्या करना है? उस पर राज़ी रहना है, अपनी सोच को चेंज करना है कि दुनिया में नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब इंसान यकीन कीजिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को ठहराते हैं कि इसकी वजह से आज मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाया, मेरी बीवी ने मुझे सूद लेने से मना किया, तो आज मेरे पास कितने घर हो चुके होते, लेकिन इसकी वजह से आज मैं मेरे दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज मैं नहीं पहुँच सका। तो कहने का मकसद है बाज़ औक़ात इंसान अपनी सोच जब चेंज नहीं करता और अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदमिज़ाजी, गुस्सा, अकड़पन लेकर आता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, ये मेरी नाकामी का सबब बनी है, ये मेरे जिसे कहा जाए मुझे पीछे लाने का सबब बनी है। अब एक तो ये है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको ठीक करना है और आइंदा अल्लाह ताला से दुआ करनी कि कोई भी आप जॉब पे अप्लाई करेंगे, कोई भी काम करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप तकदीर के फैसले पे राज़ी रहें। अगर आपने बच्चों की तरबियत की, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने उनको बेहतरीन जगह पढ़ाया, इस्लामिक एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, उनको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, बाहर का माहौल भी अच्छा दिया, जो खुद पहना वो उनको पहनाया, जो आपने जिस इदारे से खुद तालीम ली, उनको तालीम दी, लेकिन इसके बावजूद बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? रोएँ-पीटें, अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहें। आप देखिए जिसे कहा जाए नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहे। तो इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को देखें, वो क्या थे पैगंबर अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहे। दूसरी तदबीर आप ये करेंगी कि कुरान खोल कर पढ़ना शुरू कर दें, और कुरान में आप देखिए जहाँ मुस्तकिल अगर आप देखेंगे, जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, उसके बारे में बताया कि ये डिल्यूज़न है, ये फ़ानी है, ये धोखा है, ये एक तरह से एक पर्दा है। जब ये पर्दा हटेगा तो पता चल जाएगा एक्चुअल रियलिटी क्या है, दुनिया की कोई रियलिटी नहीं है। फिर सोचिए कि इतना मैं क्यों गमगीन रहती हूँ? क्या दुनिया अल्लाह की नज़र में अगर उसकी कोई हैसियत होती तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर दुनिया की अगर हैसियत होती, तो मुझे अल्लाह ताला फलाँ जिसे कहते हैं रिज़्क दे देता, फलाँ जॉब मिल जाती, फलाँ घर मिल जाता, फलाँ ये चीज़ बला-बला चीज़ें मिल जाती। नहीं, दुनिया की तो अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि दुनिया की हकीकत अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह ताला काफ़िर को उसमें से पानी का एक कतरा भी पीने नहीं देता।
تو دنیا میں اگر آپ فلورش نہیں کر پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ ایسے موقع پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اور قرآن کھول کے پڑھیں کہ دنیا کی ریالٹی کیا ہے، اس کا ڈیلوژن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، اپنی محنت کی ہوگی، اچھے سے اپنے بچوں کو پالا ہوگا، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی اگر آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو آپ افسوس نہیں کریں گے اور یہی سوچ کر راضی رہیں گے کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ اس طرح دیکھیے گا کہ آپ جب اللہ سے راضی رہیں گے تو وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بنا دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ پھر تیسرا طریقہ بتا رہی ہوں کہ پھر آپ جب یہ ساری چیزیں کر لی، قرآن پڑھ لیا، اپنی سوچ کو بدل لیا، دنیا کی حقیقت جان لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے کثرت سے دعا کرنی، اے اللہ اس دنیا میں جو بھی ناکامیاں مجھ کو ملی ہیں، جو بھی محرومیاں مجھے ملی ہیں، ان کو تو میری آخرت کے لیے کامیابی بنا دے۔ ہوتا ہے نا، آپ نے بہت اسٹرگل کی، آپ کو دیندار ہیں، آپ کے بچے دین پر نہیں، آپ نے تو بہت ایڑی کا چوڑ کیا کہتے ہیں، ایڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن بچے تو نہیں نکلے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ روئیں، اللہ سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جو بھی میری ناکامی، جو بھی میری جیسے کاجل محرومی ہے، ان کو کل آخرت میں میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے، میری ادھوری اور ناکام آرزوؤں کو آخرت میں خزانہ بنا دے، ذخیرہ بنا دے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ آئے گا۔ ہوتا ہے نا، بچوں کی وجہ سے اکثر گھر کا ماحول خراب ہوگا، ہوتا ہے نا، پھر آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، پھر آپ مسلسل غصے کی آگ میں سلگتے نہیں رہیں گے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں اتنی کوشش کرتی ہوں، خود بھی کرتی ہوں، راتوں کو بھی جاگتی ہوں، لیکن آپ اپنے آپ سے بڑبڑاتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، سلگتے رہتے ہیں اندر ہی اندر، لیکن آپ ایک دم سے پرسکون ہو جائیں گے اور پھر ناراض ہو کر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آخرت کا نقصان ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ کے اذن سے ہے، تو آپ اس بڑے انجام کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو فوراً کام ڈاؤن کریں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، کچھ مائیں ہیں جو بچوں کو بہت ڈانٹتی ہیں، اور ایک طرح سے ہر کوئی پورے گھر کا جو ماحول ہے وہ ڈپریس رہتا ہے نا، مسلسل ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ایک عجیب سی وحشت ہے نا، اور مسلسل مطلب دوسروں پر زیادتی کر رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اب آپ چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، مطلب کرتے جا رہے ہیں، ایک دم سے آپ کے سامنے چھپکلی آ جائے، اب آپ چلائیں گے؟ ایک دم آپ کو جو سارا غصہ ہے آپ کہیں گے او مائی گاڈ، وہ جو ایک لمحے کے لیے وہ آپ کو بھول بھی جائے گا، آپ بچے پہ چلا رہے تھے یا باپ پہ چلا رہے تھے، بچے کے باپ پہ نہیں، آپ بھاگیں گے، آپ کا فوراً ٹوسٹ ہو جائے گا چین۔ تو جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی ایسے لگے، فوراً جہنم کو یاد کر لیں، وہ بہت بڑی چھپکلی تو چھوٹی سی ہے، اسکارپین تو چھوٹا سا ہے، اسنیک تو سانپ چھوٹا سا ہے، وہ کیا کرے گا آپ کو اس وقت؟ وہ آپ کو جو غصہ تھا، آپ کا جو پریشر تھا، اس نے سارا آپ کو بلا دیا، کیونکہ آپ کو پتا بھی ہے اسنیک مجھے ڈسے گا، ابھی تو کیا چیخنا، بس جاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ اب ایسے موقع پر آپ کو فوراً کچھ سے لمحے کا لگا اور فوراً آپ کی توجہ کس کی طرف چلی گئی؟ اپنے آپ کو پروٹیکشن کی طرف چلی گئی۔ تو جب کبھی بہت چیخنے کا دل چاہ رہا ہے، بہت چلانے کا دل چاہ رہا ہے کسی پر بھی، تو فوراً جہنم کو یاد کر لیں، وہ بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے والا بنا دے۔ اسی لیے آپ کو اگر یاد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا تھا کہ فرعون اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اللہ تعالیٰ اسے کہتے کہ تم پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ فرعون کون تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، اتنی بڑی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے اتنی ساری وجہ تھی اس سے نفرت کرنے کی، بہت وجوہات تھی کہ میں اور آپ اس سے نفرت کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حلم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرو، تاکہ شاید یہ نصیحت پکڑ لے اور باز آ جائے، اپنی جسے کہا جائے مطلب چیزوں کو دیکھ لیں، یعنی مراد ہے کہ واپس لوٹ آئے۔ تو یاد رکھیے میرے گھر والے، آپ کے گھر والے،
ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان، میرے شوہر، آپ کے شوہر، میرے بچے، آپ کے بچے، ہماری فیملی، ہمارے بھائی بہن، ہمارے خاندان والے، ہمارے والدین، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے اور آپ کو غصہ دلاتے ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی نرم رویے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. تو کیا بات پتہ چلی کہ عباد الرحمان لوگوں کی جہالت اور ان کے اکڑ پن کے رویے پر ان کو جواب نہیں دیتے، بلکہ جھگڑنے کے بعد سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو جہنم کے لیے حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. ہر ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو مزاج کا تیز نہ نرم ہو اور لوگوں سے قریب ہو اور نرم ہو. اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں چیک کر لیں تو آپ اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ اگر گھر میں دیر سے تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو آپ اتنی آہستہ سے سلام کرتے کہ جو سونے والا جو جاگنے والا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا اور سونے والے کی نیند میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا تھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا ان پر ظلم کرے لیکن یہ صلح کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ دن اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن لیتے ہیں. تو عباد الرحمن اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے. یہ ہے پورا کی لیسن. برا کہنے والوں کو برا نہیں کرتے بلکہ بھلے کلمے کے ساتھ ان سے رخصت ہو جاتے ہیں. امام ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اعتراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ حقدار ہو، اور جنت کے وسط میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا کر دے. اور لاسٹ میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کی بد کلامی اور بد زبانی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو عباد الرحمن بد کلامی نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے، لان تان نہیں کرتے، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ آرام سے دیتے، پیس سے دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین زبان کا استعمال کرنے والا بنا دے، وہ علم عطا کر دے، وہ علم عطا کر دے جو علم کے اندر کیش ہوتا ہے. اللہم آمین. تھوڑا سا دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے، ہلکا سا جائزہ. یہ میں نے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، گھر جا کے اپنا جائزہ لیجیے گا کہ وہ جائزہ کیا ہے کہ عباد الرحمان کے حوالے سے کہ کسی کے برے رویے پر آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ برا کرتے ہیں، ایسا برا کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں یا اس کو دعا دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ ان ساری دعاؤں کو پڑھنا شروع کیجیے جو کہ ہیلپ کریں گی آپ کے برے اخلاق کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادغام. یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. پھر آگے بھی دیکھتے جائیے. آگے آتے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. پھر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
ठीक है। इंशाल्लाह इन दुआओं को आप कसरत से करेंगे और इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी ज़बान को, हमें लोगों के बुरे रवैये पर अपनी, जैसे कहा जाए, इबादुर रहमान अल्लाह ताला हमें इबादुर रहमान बना दे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। आप में से कोई कुछ शेयर करेगा जो भी आज के लेक्चर से सुना? बस आपके कमेंट्स चाहिए इंशाल्लाह। कोई भी इंशाल्लाह खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर ले। इबादुर रहमान तो हमने बताया था ना, जब नेकी का काम आता है तो उसमें क्या करते हैं, रश करते हैं, रश करते हैं। तो ये तो नेकी की पुकार है, आपकी ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी अगर आप कुछ भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। जी, कौन शेयर करना चाहता है? सिस्टर अनीसा। जी, मुझे आज के जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी के बुरे रवैये पे किस तरह का हमें अपना रवैया रखना है। तो मुझे ये बात अच्छी बहुत लगी कि ज्यादातर तो हम खामोशी अख्तियार करते हैं, लेकिन आज तो मैंने ये कहा है कि खामोशी के साथ उसके लिए दुआ करना, और स्पेशली हिदायत की दुआ, और इसके दिल के बदलने की दुआ, उसको माफ करने की दुआ, जगह भरने। जी सिस्टर वहीदा, माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हो रही है। स्माइल फेस, वजूह हुई उम्र से ना तेरा मिला रब्बिहा नासिरा। कुछ चेहरे उस दिन पर रौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखो, सबके चेहरे पर रौनक है माशाल्लाह। जी सिस्टर वहीदा। खामोश रहना, मतलब कि सॉल्व। बहुत सी लड़ाइयाँ कम जी बिल्कुल। कोई उसका जवाब देना चाहे तो जी जितना मर्जी बताई जाए, वही टाइम होता है इंसान अपने आप पे काबू पाएगा। जी बिल्कुल। अगर उसी वक्त कोई बात लाना चाहे तो जी जितनी जितनी मर्जी हमारे अंदर सब्र होगा तो फिर सुभान करेंगे। जी अल्लाह ताला वही तौफीक दे कि हम अपनी वो अपने आप में तहम्मुल जी इल्म लेकर आए, जो इल्म ले रहे हैं ना, तो आज घर क्यों टूट रहे हैं, इतनी डिवोर्स क्यों हो रही है? इल्म तो नहीं, इल्म तो सबके पास है, पूरा नेट सबके पास मौजूद है, सारे फतवे मौजूद है, टक 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 सब जाके चेक कर लें, मसला नहीं है। जो कमी है वो तज़किये की, इल्म की कमी है। जी, और कोई शेयर करना चाहता है इधर से? इस तरफ से दो लोग, इधर से कोई शेयर करना चाहता है? जी सिस्टर मरियम। अपना बंदा सुभान। और काम क्या है कि जैसे किसी के बुरे रवैये पे सलाम छोटा बहुत हार्ड टास्क है। पानी पूरी करना, उसको अपना हाथ सुभान अल्लाह। उसके लिए वो याद आ रही बस दुश्वार फक्र रक़बा। आपने जो डिस्क्राइब किया किस किस तरह कैसे किसको कुछ समझ में आया, वाकई ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला हमें इस वक्त ये याद दिला। आमीन। जी, कोई और आगे से सिस्टर जी इंशाल्लाह। जी अबू इमाम जी हनीफा का रहीमहुल्लाह। जी आया था। जी इल्म चेक करने आए थे ना, कि अपने आप को इतनी ऑनर, इतना तकवा मिला है। अमेजिंग। सुभान अल्लाह की वाकई। मैं भी थोड़ा मैं भी जब थोड़ा सा पढ़ रही थी, मैं ये सोच रही थी, अल्लाह ये इल्म कब आएगा? बस इसकी ये वाला जो इल्म है ना, कि अल्लाह ताला कैसे यहाँ तक इनको लेकर आए, क्यों ये इतना, इमाम अबू हनीफा सबसे पहले ये इमाम है जिनको इतना, उनके बाद सारे इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जिसे कहते हैं मालिक, जो भी आते थे। तो मैं ये सोच रही थी, सुभान अल्लाह, किस अगर माँ भी आई है तो माँ को भी क्या, अम्मा मम्मा अम्मा, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? मुराद है कि इंसान है, पता है, लेकिन इसकी माँ भी कैसे कहती हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं किसी और के पास जाती हूँ, और फिर उससे भी कितने प्यारे अंदाज से कहते हैं, नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये फतवा बताया। किस कदर आज से, किस कदर डाउन टू अर्थ अपने आप को करना। एक और लास्ट कमेंट लूंगी, फिर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कौन देगा अच्छा सा? किसने नोट्स बनाए? जी सिस्टर रूबीना। हम्म 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 सुनते ही नहीं है। सुभान, हिल्म देते हैं।
जी, तो मतलब फिर बच्चों की भी सही तरबियत आज हम खुद अच्छी माँ नहीं है, सच कहिए ना कि हमने इतनी वो जो बैक टू होम से सीखा होता है ना वही अगर आप बच्चे को मतलब वो उस तरीके से दिखाएँगे तो बच्चा भी वही करेगा अपनी जनरेशन के साथ। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम खुद इतना ज़्यादा पीछे हो गए कि अपने बच्चों को क्या एक कोई लिसनर में से कोई भी लिसनर में से जैसे सर सैदा प्लीज़ जज़ाकल्लाह से सर सैदा भाई बारकल्लाह। ये जॉब होती है, जॉब छोड़ कर आई हैं माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। जैसे हुँ, हुँ, काम कर हुँ, रिमाइंडर हुँ, जी, किस कदर उसने हुँ, हुँ, उन्हीं से करते हैं। वरना तो आपको तो मैं बहुत अच्छी लगूँगी और आप मुझे बहुत अच्छी लगे जी, जी, ब इस तरफ नहीं हुँ, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं लगता किसी को टाइम वेस्ट हुआ 1 घंटे में हमारा? सुभान अल्लाह! आप सोचिए कुरान का ये मुअजिज़ा है। ऐसा नहीं लग रहा हम अब पहले पढ़ रहे हैं। कल भी ऐसा लग रहा था जब हमने वो आयत पढ़ी थी रुखसाना क्या कह रही थी, कभी सोचा ही नहीं इस एंगल से ना, कि इस तरह से नए नज़रिए से और आप सोचिए कि हम तो पूरा दौरा-दौर में यूँ स्पीड लगाते हैं कि जैसे बस खत्म करना है। एक-एक आयत पे अगर आप रोक के सोच लें, यकीन कीजिए सिर्फ़ इन आयत पे अमल कर लें। कल मैंने बताया ये की है जन्नत में जाने की अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई, जिस तरह से मैंने आपको पीछे आयत के साथ इसको इंटरलिंक किया था, बताया था दीज़ आर द की फॉर गेटिंग द जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर कुछ मुनीरा आप कह दीजिए जी। पूरा लेक्चर सुनने के दौरान अपने आप को परखती रही सुभान शर्मिंदगी रहती है। हर बुराई हमने है हुँ, हालांकि आखिरी में इतना हम कुछ पता हुँ, एक हासिल करते हैं मगर हम उस पे अप्लाई नहीं करते जी, सही कह रही हैं। हमारे में मजबूर मतलब हुँ, बताया गया है कि हुँ, हुँ, बंदा जो है वो हुँ, झूठ बोले या वादा खिलाफी करे हाँ, क्या करे हाँ। ये सारी चीजें हम करते हैं बस अब जी, सही कह रही हैं। लेकिन अभी आपको लास्ट पे चुप हो जाते लास्ट में प्रैक्टिकल टिप दी है ना कि अगर गुस्सा बहुत आ रहा है बस कोई भी एक बहुत ही ऐसी जैसे कोई चीज़ आ जाए जैसे जिस चीज़ से आप बहुत डरती हैं, तो बहुत फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करके बिल्कुल स्विच हो जाता है दूसरी तरफ। तो जहन्नम को फ़ौरन सोचना है। जी, 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 थैंक इन्ना लिल्लाहि व जी, जी। हुँ, हुँ। मुझे एकदम गुस्सा आया मैंने कहा ये कोई चीज मांगने वाली तो नहीं है मुँह में हम बड़बड़ाते बहुत हैं। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं दे सकती तो मेरी बहू जॉब पे जाते हैं बात नहीं करती मालूम था मैंने पीछे ठीक किया हाँ। मैंने गलत कहा मगर मैंने कहा किसी वक्त मतलब प्रॉब्लम को हुँ, सॉल्व करने के लिए या मतलब हुँ, और हुँ। ना करने हाँ, हाँ, बात कह देना हाँ। प्रॉब्लम जी, जी, इंसान के लिए जी। कि गलत मतलब गलत काम तो मैंने किया मैंने गलती की मैंने उसको हुँ, कहा हुँ, हुँ, हुँ। काम पे जाती हुँ, थी हुँ, 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 हुँ। जी, 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 जी। पर उसकी मैंने फीलिंग नहीं कर जी, ऊपर के मुझसे इनकार किया जी, 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 जी। जी, ब नहीं हुई बिल्कुल नहीं पक्के बिल्कुल नहीं। जी, जी, बिल्कुल हम डरते हैं। बिल्कुल जी सिस्टर आप बोलिए सिस्टर आप बोलिए देखिए समीना जी, जी। नहीं, नहीं मैं वो तैयारी नहीं सबके नाम दिल में लिखे हुए सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान ये तो इबादुल रहमान की सिफ़त है, सुभान अल्लाह। पता भी नहीं चलता ना, तो बस अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता है मेरे साथ भी अभी वो मैं गाड़ी चला रही थी, अभी आई अल्हुदा की तरफ मैं आपको पता है 4 मिनट पहले आई हूँ क्लास में ना, तो मेरे आगे वाला ना गाड़ी जो है ना बड़ा स्लो 50 की स्पीड पे भी 45 चला रहा है। मैंने एक पहले मैं चलाने लगी, फिर मैंने एकदम से बोला, "पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है? एकदम से दिमाग के लिए क्या मैंने क्यों बोला इसको क्या दिल में प्रॉब्लम
ये भी नहीं बोलना चाहिए, फरिश्ते तो साथ ही साथ लिख रहे हैं ना। वो तो मैंने कहा पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह ने उसी वक्त दिल में एकदम से कहा कि तुमने क्यों बोल दिया, फिर फौरन अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा हो सकता है कोई बूढ़ा शख्स हो आगे, मुझे क्या पता इसकी क्या मुश्किलात है, चलो तुम लेन को काटो और आगे निकलो। 50 के स्पीड पे, तो कहने का मतलब है जब आप पढ़ते हैं ना, ये रिमाइंडर आपको देता है, कभी याद आ जाता कभी भूल जाते हैं। तो ऐसे मौके पर यकीन कीजिए, ये जो हम सीख रहे हैं ना, थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन ये इतना प्रोडक्टिव है कि ये आपको जन्नत में ले जाएगा अगर इन क्वालिटीज को आपको समझ आती। मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ने इनके आगे खुशखबरी के इनके लिए बाला खा जन्नत की। जी सिस्टर लास्ट, जी सिस्टर फरीदा। हाँ। हम्म, जी 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 जी। सुब- सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ लोगों को समझाने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे मैं और आप स्ट्रगल कर। जी, सुभान अल्लाह। सुब- जी 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 जी। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, हमें वैसा इल्म अता करे। जज़ाकल्लाह खैर, आपके ग्रुप से जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा आमीन। आप अपने लिए दुआ कर लीजिए, इंशाअल्लाह यहीं पे खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो माइक ऑफ है ये तो मेरा, माइक देखा था अभी, अभी मैंने ऑन किया ना दिया। अल्लाह रहम करे, इतनी मुश्किल से नहीं, मतलब अब मेरा माइक बंद है तो आवाज नहीं जाएगी ना। मुझे लग रहा है ये स्विच हुआ है ना।